جی السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب ہمارے بروکریج کلائنٹ ہیں اور ینگس کیپٹل میں آپ سب سلور گولڈ ڈائمنڈ پلاٹینیم کسی بھی کیٹیگری کے اندر ہوں گے۔ تو ہم نے جو یہ کیٹیگری بنائی ہے اس کا کوئی مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ڈفرینس کیا ہے، یہی لنک ہم نے سارے گروپس کے اندر بھیجا، آپ سب ہمارے ساتھ جو ہے اس لائیو سیشن کے اندر آئے ہیں اور یہ ہم کرتے رہیں گے۔ ہم نے بس اس سینیریو کو چینج کیا ڈاکٹر صاحب نے۔ جو ٹپیکل بروکر والے گروپس ہوتے ہیں اس سے ذرا ساتھ نے کہا کہ نہیں، مارکیٹ ایکسپرٹس جو ہے وہ ایڈ آن ہوں ینگس کیپٹل میں، اور ہم نے چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو سیشن میں ہم انشاءاللہ اسی طرح، جس طرح سے آپ ڈسکارڈ کے اندر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور لوگوں سے آپ اپنے سوال ہم سے پوچھتے ہیں، ہم اس سوال آنسر کرتی ہیں، وہاں پہ فنڈامنٹل بھی لوگ اویلیبل ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ سیشن بھی ہم رکھیں گے اور اس سیشن کے اندر بھی ہم انشاءاللہ وہی پیٹرن جو کہ ہم لاجکس اینڈ لیول کا ایک رکھتے تھے، بس اس میں یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک لائیو انٹریکشن ہم کر دیں گے۔ یہ ہم نے اسپیشلی بروکریج یوزرز کے لیے کیا ہے کہ بروکریج یوزرز ہمارے ساتھ جتنے بھی کلائنٹس ہیں بروکریج کے، وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ لائیو جو ہے وہ سیشن کریں۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے ویک میں ایک دن تو مسٹ ہوگا، اور ہم کوشش کریں گے ہم اس کو 2 دن پہ لے جائیں تاکہ آپ لوگوں کی بھی مصروفیات ایسی ہوتی ہیں اور ہماری بھی۔ تو مس وارا، سب سے پہلے میں کوئی بھی سوال لوں، آپ سب سے پہلے کراچی KSE 100 انڈیکس کا ٹیکنیکل انالیسس ذرا کریں، اس کے بعد پھر ہم جو لوگ گروپ چیٹ سوری اس چیٹ کے اندر جو اپنے سوال کمپنیز بتائیں گے اس کے اوپر ہم اپنا پھر انالیسس شیئر کریں گے۔ جی مس وارا۔ جی سر، میں بالکل کرتی ہوں۔ اچھا، ایک چیز جو یہاں پہ ڈسکلیمر دینے کی ضرورت ہوگی وہ یہ ہوگی، ہم جو بھی ٹیکنیکل یا فنڈامنٹل انالیسس کرتے ہیں یہ ہماری اپنی ریسرچ ہوتی ہے اور ہم آپ لوگوں کو بھی سکھاتے ہیں۔ یہ سیشن کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ بروکری یوزر اسپیشلی جیسے مس وارا ٹیکنیکل انالیسس کرتی ہیں، انڈیکیٹر لگاتی ہیں، یا میں فنڈامنٹلز آپ کو بتاتا ہوں، تو یہ بیسیکلی ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے۔ یہاں پہ آپ کا ڈیسیجن ہوتا ہے کہ آپ نے شیئر میں ان ہونا ہے یا نہیں۔ تو ہم نے یہ اسپیشلی بروکریج کے لیے کیا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو نہ صرف ایک سہولت دیں، پلیٹ فارم دیں جہاں پہ آپ اپنا اکاؤنٹ اوپن کروائیں، بلکہ آپ ہمارے ساتھ ہماری ٹیم کے ساتھ لائیو انٹریکشن کریں۔ جی مس وارا، کراچی انڈیکس کے اوپر اپنی ٹیکنیکل انالیسس کریں، اس کے بعد پھر ہم چیٹ میں جو سب سے پہلا کمنٹ آیا ہوگا کمپنی کا اس کا انالیسس کریں گے۔ جی سر، انڈیکس کو جب ہم دیکھ رہے ہیں ابھی، ویکلی ٹائم فریم پہ بات میں کرتی ہوں، شروع کرتی ہوں۔ آ، ہمیں ہمارا انالیسس کچھ اس طریقے سے تھا کہ انڈیکس یہاں سے اوپر جانے کے بعد سائڈ ویز موو میں بھی جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک تقریباً 30% کا ایک چانس تھا کہ یہ ایک ڈپ لے گا۔ ڈپ تو اس نے نہیں لیا، الحمدللہ، یہ اللہ کا بہت شکر ہے۔ یہ صرف ایک رینج باؤنڈ میں جا رہا ہے۔ رینج باؤنڈ میں ہمارے پاس پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی بھی اسٹاک کی کلیئر انڈیکیشن نظر نہیں آتی ہے۔ اس نے اسی لیول پہ آ کے جو ہم نے مارک کیا تھا اس سے تقریباً تھوڑا سا نیچے کی قریبی، مطلب کلوزنگ تو ویکلی اس میں ہوئی نہیں اتنی، 169 کے سے یہ پھر اوپر کی طرف واپس جانا شروع ہوا، اور ابھی پھر یہ اپنی اس رینج میں موجود ہے۔ اور الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اس نے ایک بریک آؤٹ بھی دیا ہے ایک اچھے والیوم کے ساتھ۔ تو ہم امید یہ کریں گے کہ آنے والے کچھ دنوں میں اگر ہم ویکلی ٹائم فریم پر، ہائر ٹائم فریم پہ بات کرتے ہیں، تو ہمیں یہ انڈیکس میں ایک اچھی موو بھی نظر آ رہی ہے۔ ساتھ میں جب ہم ڈیلی ٹائم فریم پہ دیکھ رہے ہیں تو آج کی کینڈل میں ہمیں ایک تھوڑا سا بیئرش سینیریو تو آیا نظر کہ کل کی جو تھرسڈے کی کینڈل تھی اس کو یہ بریک نہیں کر سکا، اور اسی رینج میں آیا اور ایک پن کینڈل اس نے فارم کی ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس تھوڑا سا ہم کانٹیکسچل پرائز ایکشن کو دیکھیں گے کہ کل یا منڈے کو اب جو کینڈل بنتی ہے اس کی بیس پہ ہم ڈیسیجن لیں گے کہ یہ یہاں سے آیا، یہ اوپر کی طرف جائے گا، اور اب اس کے بعد کی جو امیڈیٹ ڈیمانڈ زون ہے وہ تقریباً بنتی ہے سپلائی زون بنے گی تقریباً 184 سے 188 کے درمیان۔ تو اس لیول کا یہ پہنچ کے سسٹین کر پاتا ہے یا نہیں، آیا وہاں پہ ہمارے انٹرنیشنل سینیریو کس طرح کے رہتے ہیں، ہماری انٹرنل جو لوکل حالات ہیں وہ کیسے رہتے ہیں،
اور بائرس کا انٹرسٹ یہاں کیا وہ ہمیں ریئیکشن دیتے ہیں، اس کی بیس میں ہم اس کے آگے کی موو کو ڈیسائیڈ کریں گے۔ جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پہلی کمپنی میں اس بار ہمارے پاس پیل آئی ہے، فرحان جوید صاحب ہیں، ان کا ہمارے پاس آیا ہے کہ پیل کے اوپر انالیسس کا، سوری شاہد جواد صاحب کا، اور نیچے فرحان صاحب نے پیل کا ہی پوچھا ہے۔ تو اچھا، پیل کے اوپر تھوڑا سا ہم فنڈامنٹلی دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم ٹیکنیکلی دیکھیں گے کہ اب اس میں ہم نیکسٹ کیا کر سکتے ہیں۔ اگر میں فنڈامنٹلس کی بات کروں تو میں پچھلے 3 کوارٹرز کو کمپیئر کروں گا۔ ابھی جو چوتھا کوارٹر بھی ہوتا ہے تو ہمارے پاس بیسیکلی ڈیسیجن میں آسانی ہو رہی ہے فنڈامنٹلی۔ تو کوارٹر ٹو 2025 کی اگر میں بات کروں، کوارٹر ٹو 2025 کی، تو کمپنی نے جو سیلز کی تھی وہ 21 بلین کے آس پاس کی تھی، اور تقریباً 1.71 بلین کا پروفٹ تھا۔ 2023 کے اندر کمپنی نے 11.27 بلین کی سیلز کی، ٹھیک ہے، اور اس میں کمپنی نے جو پروفٹ ارن کیا تھا وہ 681 ملین کا، اس کا مطلب پچھلے کوارٹر کی نسبت کم تھا۔ بٹ کمپنی نے کوارٹر 4 کے اندر 2025 کے کمپنی نے 16.73 بلین کی سیلز کر کے تقریباً 795 ملین کا پروفٹ ارن کیا تھا۔ اور کوارٹر 2026 کا جو پہلا کوارٹر تھا وہ حیرت انگیز طور پہ آپ دیکھیں، پچھلے دو کوارٹر، کوارٹر 3 اور کوارٹر 4، دونوں کے نام کوارٹر 4 کیونکہ اینول کوارٹر بھی ہوتا ہے، چوتھا کوارٹر کمپنی کا ہوتا ہے، اینول رزلٹ بھی ہوتا ہے۔ اب میں کوارٹر 1 2026 کی اگر میں بات کروں آپ کے ساتھ، تو کمپنی نے 20 بلین کی سیلز کی تھی، اور کمپنی نے اس میں 870 ملین کا پروفٹ ارن کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کمپنی کی سیلز پچھلے 2 کوارٹر کے سے کافی انکریز ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ اگر ہم ابھی اس کا کوارٹر 2 2026 کا رزلٹ آئے گا، اس کی بیس پہ ہم دیکھیں گے، اگر تو یہ اسی ریٹ کے اندر لیٹ پوز 41 سے لے کے 50 کے درمیان یہ رینج باؤنڈ کرتا رہا، تو پھر ہم سوچیں گے یار ہم کمپنی کو شفٹ کرتے ہیں۔ بٹ اگر کوارٹر 2 2026 کا رزلٹ بہت اچھا آتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پچھلے 3 کوارٹرز کو بیٹ کرتا ہے، تو پھر ہم جو لوگ 57 میں بھی اسٹرک ہوئے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے اگر آپ پیل کا چارٹ دیکھیں، اس سے پہلے پیل جو تھا وہ 51 سے لے کے 58 کے راؤنڈ اباؤٹ بھی کرتا تھا، اور ایک بیچ میں آیا تھا موقع جہاں پہ ینگس کیپٹل نے بھی کال دی تھی، اور وہاں پہ ہم نے 67 کا ٹارگیٹ کو اچیو کیا ہوا ہے۔ تو ابھی کیا ہو گیا کہ وہاں سے پل بیک ملا، اور پل بیک ملتے پھر جنگ آ گئی، جنگ کے بعد یہ بالکل رینج پیچھے آ گیا۔ اب نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اپنی جو 50 ہے وہ اس کو توڑتا ہے رزلٹ 2 کوارٹر کی بیس کے اوپر، تو پھر اس کو انشاءاللہ 60 کے آس پاس ہم دیکھیں گے، کیونکہ اس کی ارننگ ایکسپیکٹڈ ہے کوارٹر 2 کی، اور اس کی بیس پہ انشاءاللہ ہمارے جو مارکیٹ ایکسپرٹ ہیں، جو آپ کے سارے جتنے بھی بروکریج گروپ ہے اس کے اندر موجود ہوں گے، وہ آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے اسی کے جی رزلٹ بہت اچھا آ گیا، وی کین فردر اس کو ہولڈ کریں گے۔ جی مس بار آپ ٹیکنیکلی آپ بتائیں تھوڑا سا اس کے اوپر۔ جی سر، ٹیکنیکل جب ہم اس میں دیکھ رہے ہیں تو اس نے ایک میگا فون فارمیشن پہ یہ ویکلی بیس پہ آ رہا ہے۔ یہاں یہ ایک بلش کنٹینیویشن پیٹرن ہے، اور اس کے بعد ہم پرائس کو اوپر جاتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ اگر نہ بھی اس کو فالو کرتا تو یہ جو ٹرینڈ لائن بن رہی ہے، اگر یہ کنٹینیو ہوتی ہے تو یہ تقریباً 72 کے قریب یا اس سے اوپر بھی جا سکتی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں ہمیں اس میں ایک اچھی موو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آر ایس آئی اس ٹائم پہ ایک اچھے ہیلدی اسٹیٹ پہ موجود ہے، اور والیوم اس میں تھوڑا سا بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے ویکلی ٹائم فریم پہ۔ یہاں پہ ہم کینڈل دیکھتے ہیں تو لاسٹ 2 کینڈلز تقریباً لاسٹ 2 ہفتے میں کینڈلز گرین تو رہیں، مطلب بائنگ میں انٹرسٹ تو تھا لوگوں کا، لیکن اتنی اسٹرانگ کینڈلز بنتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ اٹ مائٹ بی پاسبل کہ والیوم اتنا کوئی اچھا اسٹرانگ نہ بن پا رہا، اور جس کی وجہ سے یہ اپنے لیولز کو آگے اچیو نہیں کر پا رہی۔ اور ہماری کال بھی ہے اس میں، تقریباً 7 تاریخ کو ہم نے اس میں کال بھی دی تھی، اور ہمارا ٹارگیٹ ہم ابھی ایم کر رہے ہیں امیڈیٹ 74.5 کے لیے۔ اگر ہم ڈیلی ٹائم فریم پہ اس میں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں یہاں پہ تھرسڈے کو ایک اچھی اسٹرانگ ریورسل کینڈل بنتی ہوئی نظر آئی ہے، اور اس کے بعد آج کی کینڈل میں ہمیں تھوڑا سا ایک بلشنس بیئرشنس نظر بھی آئی تھی ساتھ میں۔ والیوم میں دیکھتے ہیں تو ہمیں والیوم اچھا جنریٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو ایک ایوریج اس کا تقریباً 5.7 ملین ہے، اور آج کے دن میں اس میں تقریباً 7.7 ملین کے قریب اس میں والیوم جنریٹ ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہم یہی سمجھیں گے کہ یہاں پہ بائرس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے
यहाँ पे एक सेल साइड लिक्विडिटी डेवलप हो रही है, तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि या तो ये थोड़ा टाइम अभी कंसोलिडेट कर सकता है और फिर उसके बाद ये ऊपर की तरफ मूव करेगा इंशाल्लाह जल्दी, या ये है कि इसमें वॉल्यूम अगर इसी तरीके से डेवलप होते हैं तो ये फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द 46 टू 47 के पास हमें नज़र आएगा। जी बिल्कुल सही हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंपनी हमारे पास गदून टेक्सटाइल मिल है, और इसकी अभी हमने रिसेंटली कॉल भी दी थी। तो अगर मैं इसको इसकी सितंबर की प्राइस को कोट करूँ ना, सितंबर 2025 में कंपनी उस वक्त 429 के आसपास थी। और अगर मैं 18 मई को इसका चार्ट देखता हूँ तो 18 मई को 15 से 18 मई में कंपनी जो है 357 थी। वहां से कंपनी ने एक पुल बैक लिया काफ़ी शदीद, और कंपनी ने जो है ना वो तकरीबन करते करते 275 के आसपास ही गई थी। और फिर वहां से अब रिकवरी हमें नज़र आई है। ठीक है, अब इसमें मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि जी वो न्यूज़ है, ये है वो, बट क्योंकि अगर हम साल के इस कंपनी को साल के पैमाने में रखें तो साल सितंबर में कंपनी 425 का शेयर था, आज वो 441 का है। और 18 मई को 15 मई को ये 357 का था, तो आज 341 पे क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी इसके अंदर कोई पोटेंशियल हो सकता है। फंडामेंटली अगर मैं आपसे सिर्फ लास्ट क्वार्टर का नंबर शेयर करता हूँ, क्योंकि हमने बहुत सारे शेयर्स को कवर करना है। तो अगर आप लोग रिएक्ट करेंगे कि मैं 2-3 क्वार्टर के फंडामेंटल बताऊं तो ठीक है, अगर एक क्वार्टर करना है तो भी आप रिएक्ट करेंगे। अगर एक क्वार्टर ही मैं एक्सप्लेन करूं तो मैं एक क्वार्टर जो भी आएगा उसी की बेस पे मैं एनालिसिस करूंगा। चलिए जी, बस क्वार्टर अभी चौथा क्वार्टर गदून टेक्सटाइल मिल का जो एनुअल जो था, उसमें कंपनी ने क्वार्टर 4 की सिर्फ बात करूंगा कि 19.45 बिलियन की सेल पे कंपनी ने नेट प्रॉफिट जो है वो 1.79 बिलियन का नेट प्रॉफिट अर्न किया था। इसका मतलब है कि अब इसकी आ, अब क्वार्टर 2026 की अर्निंग आने वाली है, और ये वो अर्निंग होगी जहां पे एक अच्छा खासा हमें नंबर नजर आ सकता है अगर क्वार्टर चेंज होता है और अगर रिजल्ट हमें मिलते हैं तो अभी नेक्स्ट हमारे पास क्वार्टर आ रहा है। तो जी मिस वारा, गदून टेक्सटाइल मिल सितंबर 2025 425 का शेयर था, आज 341 का क्लोज हुआ है। तो क्या नजर आता है आपको? जी सर, मैं अभी फ़िलहाल वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ही इसको एनालाइज़ कर रही हूँ और यहाँ पे हमने देखा कि ये एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ था और उसको इसने एक अच्छे लेवल से ब्रेकआउट किया था 357 के पास। उसके बाद इसने अपनी इस ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट भी किया है और वहाँ से दोबारा एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ही ऊपर जाता हुआ नज़र आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे आरएसआई में भी एकदम स्पाइक आया और साथ-साथ इसमें वॉल्यूम में भी स्पाइक जनरेट हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम पे फ़िलहाल ये कैंडल काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, लेकिन हमें ऊपर के लेवल्स पे जाके तकरीबन 339 से 341 के दरमियान यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग भी होती हुई नज़र आई। हो सकता है कि जो लोग यहाँ पे एक लंबे अरसे से फंसे हुए हों, क्योंकि ये तकरीबन अप्रैल से ये कंसोलिडेशन मोड में था, यहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की है और फिर अब हम ये उम्मीद करेंगे कि यहाँ पे तकरीबन ये 332 के लेवल को ये रीटेस्ट कर सकता है और यहाँ से फिर ये ऊपर की तरफ हमें जाता हुआ नज़र आएगा। अगर ये सस्टेन करता है 374 के लेवल को और इसका वॉल्यूम तकरीबन जाता है वीकली डेली वॉल्यूम की बात कर रही हूँ, डेली वॉल्यूम इसका सस्टेन करता है 70 के दरमियान, तो फिर हम ये उम्मीद रखेंगे कि ये इंशाल्लाह जल्दी अपने एक अच्छे हायर लेवल पे 437 के पास हमें नज़र आ सकता है। बिल्कुल ठीक हो। नेक्स्ट कंपनी हमारे पास टॉमसीएल है। आ, अक्टूबर 2025 में कंपनी जो है ना वो 70-72 के आसपास थी, और वहां से कंपनी को एक पुल बैक मिला काफ़ी शदीद। जंग भी लगी बीच में, जारी बात छोटे पैसों का शेयर होता है, लोग जल्दी इससे भाग जाते हैं। ठीक है। और अब पिछले आप समझ लें कि जनवरी से लेके ये शेयर जो है ना 30 रुपये से लेके 45 भी मुश्किल से अभी रिसेंट हो रहा है। तो ये पिछले 6 महीने से इस रेंज बाउंड के अंदर, इसी रेंज के अंदर ये स्ट्रगल कर रहा है। और जारी बात, अब लोगों के पास अगर ये लॉन्ग टर्म में पहले ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो लोग इसमें स्टक हुए होंगे। कोई 70 के लेवल पे स्टक हुआ होगा, कोई 60 के लेवल पे स्टक होगा। और आज हमने जो है वो इसकी हमने देखा कि डॉक्टर साहब ने इसकी हमें कॉल भी दी थी ग्रुप के अंदर। तो अगर मैं इसके फंडामेंटल्स की बात करूं तो क्वार्टर जो है 3/2026, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 315 बिलियन की सेल्स की थी और कंपनी ने 14.83 मिलियन का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अर्न किया था, जो कि पिछले क्वार्टर क्वार्टर 2 2026 के मुकाबले में ये बहुत कम था।
ठीक है, अब इसकी भी अर्निंग रिपोर्ट आने वाली है, जो कि क्वार्टर 4 2026 होगी, और वो एनुअल रिपोर्ट भी होगी। अगर वो आने वाली जो रिपोर्ट है, अगर वो क्वार्टर 2 को भी बीट करती है और एनुअल रिजल्ट में भी वो बीट करती है, क्वार्टर 2 2026 में कंपनी ने 3.99 बिलियन की सेल्स पे 190 मिलियन का नेट प्रॉफिट अर्न किया था। और क्वार्टर 3 में कंपनी स्ट्रगल की, और जाहिर बात है लोग उसी तरह जैसे जैसे रिजल्ट्स आते हैं लोग वहां से उस शेयर से एग्जिट करते हैं। अब इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट आएगा जो कि एनुअल रिजल्ट भी होगा। तो अगर उसमें नंबर बेहतर आते हैं तो इंशाल्लाह बेहतर होने के चांसेस भी हैं। इनके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी दुबई और सऊदीया में हमें सुनने को मिलेंगे कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो रहे हैं, तो उससे चीज़ें मजीद बेहतर हो सकती हैं। ये अब इनकी एनुअल रिपोर्ट आएगी, उसके अंदर ये अपने फ्यूचर के भी बारे में बताएंगे कि फ्यूचर में इनका क्या प्लान है। तो आई थिंक इट्स अ गुड शेयर फॉर दी शॉर्ट टर्म, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी ग्रुप्स के अंदर आपको कॉल भी दी थी व्हाट्सएप में। जी मिस वाला, टेक्निकली अब इसको हम कैसे देखते हैं? जी सर, टेक्निकली तो हम इसमें एक अच्छा पोटेंशियल देख रहे हैं, लेकिन साथ में इसमें ऐड करती चलूँ कि इसमें पिछली मूव भी जो तकरीबन इसने 46 को इसने हिट किया था, वो भी एक न्यूज़ की बेस पर ही इसमें मूव आई थी। वो ये कि इसको नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट्स थे मिडिल ईस्ट की साइड के। जैसे ही हालात दोबारा ख़राब हुए, जो कि हमने देखा था कि 29 जून से वापस हुए थे, तो स्टॉक ग्रेजुअली नीचे आना शुरू हुआ, करेक्शन फेज़ में आया। जो कि मूव हम इसको 100% ये कहेंगे कि ये न्यूज़ बेस्ड मूव थी, और इसके टेक्निकल से इसका या फंडामेंटल से इसका लेना देना कुछ खास ज़्यादा था नहीं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कि इसने एक अच्छा इस वीक में एक राइज दिखाया है। इसमें भी वॉल्यूम और आरएसआई एक अच्छे लेवल पे हमें नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ हमें मुझे छोटा सा वीकली टाइम फ्रेम पे एक आरएसआई डाइवर्जेंस, बुलिश डाइवर्जेंस भी बनती हुई नज़र आ रही है। हमारी कॉल थी तकरीबन, जिसमें हम ये एम कर रहे थे कि अगर ये 46 को अब क्रॉस करता है अच्छे लेवल्स के साथ, तो ये 49 पे हमें नज़र आ सकता है, और इसका 30% के साथ एक्सटेंडेड टारगेट हम 50.7 हम एम कर रहे थे। न्यू स्पेस मूव थी, इसलिए ये सिर्फ अपने फर्स्ट टारगेट को अचीव करके ये नीचे चला गया था। लेकिन इंशाल्लाह अगर मूव हमें अच्छी नज़र आती है चलती हुई, और सेंटीमेंट बेहतर रहता है, क्योंकि कराची 100 इंडेक्स मोस्टली एक सेंटिमेंट बेस मूव देता है। मार्केट में अच्छा खबरें हैं तो फिर मूव ऊपर की तरफ जाएगी, कहीं जंग लग जाएगी तो वापस ये एकदम नीचे आ जाएगा, उसमें फंडामेंटल्स और टेक्निकल सब चीज़ें फेल हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि वॉल्यूम तकरीबन डेड थे तकरीबन 10 जुलाई के बाद से 5 अगस्त तक, और उसके बाद इसमें एक राइज नज़र आया। यहाँ पे हम इसमें प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग के साथ हमने देखा कि इसने एक हायर हाई भी बनाया है। हम उम्मीद ये करते हैं कि यहाँ पे ये जो एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है उसको ये रीटेस्ट करता है, और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आता है। अगर इसमें कोई फ्रेश एंट्री लेना चाह रहा है, तो उसके लिए ये तकरीबन अपना 35.45 से लेके 37.7 कह लें, या 38 तक का एक लेवल, ये बहुत अच्छा लेवल है। यहाँ पे आप अपनी प्राइस को एवरेज भी कर सकते हैं, आप फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं, और फिर इसको इंशाल्लाह आप ऊपर जाता हुआ देख सकेंगे। हमारे जो टारगेट्स हैं वो प्रीवियस टारगेट्स ही रहेंगे। इमीडिएटली हम एम करेंगे इसको 42 के लिए, वहाँ पे हम थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देख सकते हैं, और उसके बाद हम इसको देखेंगे 44 या 46 के लिए। बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट शेयर मेरे पास सर्विस लॉन्ग टायर SLM है, अभी रिसेंटली IPO हुआ था, तो इट्स अ गुड कंपनी। अब इसके ऊपर हम फंडामेंटली तो, क्योंकि अभी इनके नंबर्स आएंगे तो हमें पता चलेगा, बट इट्स अ गुड कंपनी क्योंकि सर्विस वालों की कंपनी ऑलरेडी सर्विस अच्छा बिजनेस, बाकी जो इसकी जुड़ी हुई कंपनीज हैं वो अच्छा बिजनेस कर रही हैं, और अच्छे आप उनके रेट्स देखें वो अच्छे लेवल पे हैं। जो इन्होंने 2025 के फंडामेंटल्स एनुअल रिपोर्ट जो कि दी थी उसमें 10 बिलियन की प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट 49 बिलियन की सेल्स हैं। 2024 में 5 बिलियन का प्रॉफिट था, 37 बिलियन की सेल थी। इसका मतलब है 24 और 25 की निस्बत आप देखें तो काफ़ी बड़ा मार्जिन नज़र आता है। अब जारी बात, अब क्वार्टर 1 2026 का रिजल्ट आएगा तो ही इसके ऊपर हम मजीद जो ये शेयर है ये आपको मूव देता नज़र आएगा। जी मिस वारा, टेक्निकली हमें कुछ इसमें है, या हम नेक्स्ट शेयर मुगल की तरफ चलें? फरहान जुवेर साहब ने मुगल के बारे में पूछा है। सर, इस
का जो एक डाउन ट्रेंड था, ये लोअर लो जो ये बना रहा था, वो एक ट्रायंगल फॉर्मेशन में बना रहा था, ये आप कह लें पैरेलल चैनल में ये बनता हुआ जा रहा था। उसको इसने ब्रेकआउट दिया था और वापस इसने इस लेवल को रीटेस्ट किया है और फिर यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा था। मैं इसका क्विक रिव्यू दूंगी क्योंकि इसका चार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ ये इस लेवल को कंसोलिडेट कर रहा था तकरीबन 3 अगस्त से लेकर 6 अगस्त के दरमियान, ये लेवल को ब्रेक नहीं कर सका है और ये जो लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 24.56। इस लेवल को अगर ये ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर अब यहाँ पे हमारे पास एंट्री बनती है और फिर हम इसको ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। हमारा सबसे पहला जो टारगेट होगा वो तकरीबन 25.33 और हमारा सेकंड टारगेट होगा 25.9 के लिए। फिलहाल क्योंकि हमें इसमें इतने ज़्यादा कैंडल्स और इतना डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वॉल्यूम सेल साइड पे ज़्यादा डिक्रीज इंक्रीज हुआ है, तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आने वाले 1-2 दिन में हम इसको वापस नीचे आता हुआ देख सकते हैं। कोई अगर एंट्री लेना चाह रहा है तो उसके लिए ये लेवल्स तकरीबन 23 के दरमियान तक के ये एक अच्छे लेवल्स हैं कि यहाँ पे आप अपनी प्राइस को एवरेज भी कर सकते हैं और अपनी प्राइस में आप अगर आप चाहते हैं इसमें एंटर होना तो आप एंटर भी कर सकते हैं और फिर इंशाल्लाह आपको ये इमीडिएट टारगेट तो हम इसका 24.5 अभी रख सकते हैं। अगर ये इस लेवल को सस्टेन करता है तो फिर इंशाल्लाह ये ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट हमारे पास मुगल है, और मुगल स्टील्स एक अच्छी कंपनी। और जैसे कि लास्ट कल जो हमारा ब्रोकरेज के साथ सेशन हुआ था, डॉक्टर साहब ने उसके अंदर आप लोगों को बताया था कि आने वाले टाइम में सीमेंट सेक्टर जो है वो ओवरऑल एक आपको मूव देता नजर आएगा। तो क्योंकि स्टील बेसिकली मुगल जो स्टील है वो जुड़ी हुई है कंस्ट्रक्शन के साथ, तो अगर आपका सीमेंट सेक्टर चलता है तो जाहिर बात है मुगल भी उसके साथ चलेगा। और लास्ट जो हमारा, जैसे मैंने बताया कि सेशन में डॉक्टर साहब ने भी बताया आप लोगों के साथ जो कल सेशन हुआ था हमारा, और वो भी हमने स्पेशली ब्रोकरेज जो हमारे क्लाइंट्स हैं उन्हें ही रखा है, और हमने ये डिसाइड किया है कि हम हर वीक में जो है वो एक सेशन जो है इस तरह का जो डॉक्टर साहब के साथ होगा हम वो भी कंडक्ट करेंगे। तो अगर आप मुगल के एनालिसिस की बात करें, दिसंबर में 105 रुपये का शेयर था और फिर जंग लगी। जारी बात ये भी उन्हीं शेयर में आता है कि जब कोई भी अनहोनी सी होती है लोग सबसे पहले छोटे शेयर्स में से एग्जिट कर देते हैं, फंडामेंटल्स और टेक्निकल वो नहीं देखते। बट अगर मैं इसके फंडामेंटल्स की बात करूं, मुझे इसके फंडामेंटल्स जो है वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। इम्प्रेस है कि हर साल जो है वो अब कंपनी अपने आप को इम्प्रूव करती है। क्वार्टर की बात करूं तो क्वार्टर 3 2026 में कंपनी ने 460 बिलियन का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अर्न किया था। 18 बिलियन की सेल्स थी कंपनी की। ठीक है। और क्वार्टर 2 जो होता है, आपने ये एक चीज़ और देखनी है कि जो क्वार्टर 2 आपका स्टील सेक्टर में होता है उसमें जारी बात है कंस्ट्रक्शन अच्छी हो रही होती है, उसमें रिजल्ट अच्छे होता है। अब जो आपकी इसकी नेक्स्ट अर्निंग रिपोर्ट आई है वो क्वार्टर 4 होगी, और क्वार्टर 4 का मतलब है कि वो एनुअल रिजल्ट होगा। तो वो इंशाल्लाह अपने, अगर पिछले जो क्वार्टर है 2025 में कंपनी ने, 2025 में कंपनी ने आप अंदाजा लगाएं कि 89 बिलियन का नेट प्रॉफिट अर्न किया था, और 965 मिलियन का नेट प्रॉफिट अर्न किया था, और 89.41 बिलियन की नेट सेल की थी। अब देखते हैं कि अगर आप ये यहाँ पे मुगल स्टील अपना एनुअल रिजल्ट इसको बीट करता है तो हमें इसमें एक रेडी नज़र आ सकती है। जी मिसवारा। जी सर, इसने वीकली टाइम फ्रेम से ही इसको दोबारा मैं शुरू करूँगी। 22 दिसंबर के बाद से हमने इसमें एक बहुत शार्प डिप देखा 30 मार्च तक और उसके बाद इसने ग्रेजुअली ऊपर जाना शुरू किया। अच्छा, जब करेक्शन की बात आती है तो कोई भी स्टॉक है, कभी भी उसमें करेक्शन आती है वो बहुत शार्प होती है। मोस्टली अगर वो करेक्शन 1 दिन में आ रही है या 1 दिन में या 1 हफ्ते में वो आ रही है, तो उसको रिवर्स होने में तकरीबन 15 से 20 दिन लग जाते हैं। करेक्शन को ओवरकम होने में ज़्यादा वक़्त लगता है बनिस्बत करेक्शन होने में। तो जितनी तेज़ी से ये स्टॉक नीचे आया था, अब उससे ज़रा स्लोली ये ऊपर की तरफ जाता हुआ हमें नज़र तो आ रहा है। वॉल्यूम उस टाइम पे इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रहे थे। हम इसमें वीकली टाइम फ्रेम पे देख पा रहे हैं कि अगर हमारा एवरेज कोई तकरीबन 6.2 मिलियन या 7 मिलियन के करीब था, तो मैक्सिमम 4 मिलियन या 5 मिलियन के करीब हमारे पास लेवल आ रहे थे, वॉल्यूम्स आ रहे थे, जिसकी वजह से ये एक अच्छी मूव हमें देता हुआ नजर नहीं आया। वीकली टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं तो हमें 18 मई से लेकर 20 जुलाई के दरमियान एक बुलिश डाइवर्जेंस बनती हुई तो नजर आ रही है, लेकिन साथ में वॉल्यूम हमारा अभी तक इसमें सस्टेन है और प्राइस बढ़ती भी नजर आ रही है, जो कि एक और करेक्शन की तरफ इशारा भी कर रही होती है। अगर हम
प्राइस एक्शन की बात करते हैं, कैंडल्स को देखते हैं तो हमें तकरीबन इस तरफ एक छोटा-सा गैप नज़र आ रहा है। हो सकता है हमारे पास चांसेस ज़्यादा हैं कि ये एक शार्प डिप आता है इस लेवल को, ये गैप को फिल करता है और फिर इंशाल्लाह ये ऊपर की तरफ फिर मूव करता हुआ नज़र आ सकता है। तकरीबन वीकली टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं तो 91 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल हम कंसीडर करेंगे। अगर यहाँ से मूव आती है तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस ये हैं कि 91 से ये रिजेक्ट होके वापस नीचे की तरफ आ सकता है और अगर ये 91 से ऊपर सस्टेन कर लेता है, रिजेक्शन नहीं आती, वॉल्यूम्स अच्छे लगते हैं, तकरीबन 7 मिलियन या 8 मिलियन वीकली से ज़्यादा लगेंगे वॉल्यूम, तो फिर हम ये उम्मीद करेंगे कि ये 100 क्या 100 से ज़्यादा भी तकरीबन 111 तक भी ये ऊपर जाता हुआ नज़र आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे जब हम इसमें देख रहे हैं तो हमें वही चीज़ नज़र आ रही है, प्राइस तो सस्टेन्ड है लेकिन वॉल्यूम हमें यहाँ पे ग्रेजुअली थोड़ा-सा कम नज़र आ रहा होता है। यहाँ पे ये इस चीज़ की निशानी होती है कि यहाँ पे प्राइस एक थोड़ा-सा डिप लेती हुई नज़र आ सकती है। हम हमारा एसएल आएगा तकरीबन 75.7 के करीब और हम एम करेंगे कि हमें 79 के पास हम इसको दोबारा बाय बैक कर सकते हैं और यहाँ से फिर इसका इमीडिएट टारगेट 87 टू 85 और उसके बाद फिर इंशाल्लाह इसको हम ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। हम जल्दी जल्दी अब करते हैं क्योंकि हमारे पास सवाल बहुत ज्यादा हो जाएंगे और ये ना हो कि हम किसी का सेशन में सवाल रह जाए। हमारी के ऊपर आज भी ब्रोकरेज ग्रुप के अंदर डॉक्टर साहब ने आपके साथ शेयर किया था और आपके जो ब्रोकरेज ग्रुप है ना इसके अंदर मार्केट एक्सपर्ट मौजूद होते हैं, डॉक्टर अली साहब, निशान साहब। वो आपको फंडामेंटली जो है आप उनसे पूछा करें क्योंकि आप लोगों को सर टेक्निक्स जुबैर, नहीं है। एक्सक्यूज मी सर जी आवाज जुबैर, आ रही? सर इको बहुत ज़्यादा हो रही है, समझना थोड़ा सा मुश्किल हो अब रहा है। ठीक है। सॉरी, अब ठीक है। जी 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 सर। सॉरी। तो माड़ी पे मैं कह रहा था कि माड़ी के ऊपर आप लोगों के जो ब्रोकरेज ग्रुप हमें बनाए हैं, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, प्लाटिनियम, उसमें मार्केट एक्सपर्ट मौजूद होते हैं। ठीक है, हमने ब्रोकरेज से टिपिकली नाम चेंज कर मार्केट एक्सपर्ट किया। आप लोग उनसे भी पूछ पूछ सकते हैं दिन के अंदर किसी वक्त भी कि सर ये कंपनी के जो है ना फंडामेंटल्स बता दे। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको उसके अंदर भी जो है वो हम फुल कोऑपरेट करते हैं और उनको डॉक्टर साहब ने हदायत दी हुई है कि यार जो बंदे आपसे फंडामेंटली पूछ रहे हैं उनको फंडामेंटल्स बताया करें। तो नेक्स्ट कंपनी मारी है जी, मिस वारा मारी के ऊपर थोड़ा सा बता दें, मैं उसके बाद इसके क्वार्टर रिजल्ट बता दूंगा। जी सर, बारी में हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम पे आरएसआई एक अच्छे इंक्रीज़ होते हुए लेवल पे भी नज़र आ रहा है। इसके साथ-साथ वॉल्यूम भी एक अच्छी तरीके से इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आया है। अगर हम प्राइस एक्शन को देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे तो इस वीक की कैंडल बहुत अच्छी बनी। साथ-साथ हमें फ़ौरन ही उसमें एक प्रॉफ़िट टेकिंग भी नज़र आई जो कि बनता भी था क्योंकि काफ़ी लोग बहुत टाइम से इसमें स्टक भी हुए हुए थे। तो और आज इसका रिज़ल्ट भी था। रिज़ल्ट के बाद हमें अमूमन प्रॉफ़िट टेकिंग नज़र आ भी रही होती है और ये देखें डेफ़िनिटली डेली टाइम फ्रेम पे आज ही की कैंडल में ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई है। तो यहाँ हम इस बात को इस तरीके से लेके जा सकते हैं कि अब यहाँ पे प्राइस थोड़ी-सी नीचे आ सकती है। जो डिविडेंड अवेल करना चाह रहे होंगे वो यहाँ पे बाय बैक कर सकते हैं और लेवल हमारा वही हम इसको कंसीडर करेंगे तकरीबन 642 से लेके 659 के दरमियान और हमारा स्टॉप लॉस अब इस रैली में तकरीबन 628 के करीब होना चाहिए। यहाँ हम उम्मीद ये करेंगे कि यहाँ से ये रीटेस्ट होके ऊपर की तरफ जाएगा और तकरीबन 700 के लेवल को ऊपर जाने का पोटेंशियल ये रखता है। जी next सवाल है मेरे पास पीएसओ का तीन का रिजल्ट 2020 ज़ुबैर साहब, सर आवाज़ नहीं आ रही। तीन कंपनी ने 742 बिलियन की सेल पे 25 बिलियन का नेट प्रॉफिट अर्न किया था, जो कंपनी का एनुअल रिजल्ट में बिलियन का नेट प्रॉफिट अर्न। जी आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो?
जी मिस वारा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, अ, बीच में से गायब हो गई थी आपकी आवाज़। वो गलती से मेरा जो है वो वाईफाई कनेक्ट हो गया था, मैं मोबाइल डेटा से था। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि पीएसओ क्वार्टर 3 में क्वार्टर 3 2026 में कंपनी ने 25 बिलियन का नेट प्रॉफिट अर्न किया था। और अगर एनुअल कई, अब क्योंकि इसका रिजल्ट एनुअल आएगा, इसकी भी अर्निंग रिपोर्ट हमारे पास एनुअल होगी। और फिर 2025 में कंपनी ने 20 बिलियन का नेट प्रॉफिट अर्न किया था, और अभी जो एक्सपेक्टेड इसका प्रॉफिट होगा वो तकरीबन 43 40 से 45 बिलियन के आसपास होगा। अगर ये नंबर टीटीएम होता है, एक्सपेक्टेड होता है, और जो हम पिछले 3 क्वार्टर को कंपेयर करके हम एक एवरेज निकालते हैं कि यार उम्मीद है इतना प्रॉफिट ये क्वार्टर 2 4 में देगी, या कंपनी एनुअल यहाँ पे क्लोजिंग देगी, तो हमें नजर आया कि ये हमें यहाँ पे एक अच्छी अर्निंग रिपोर्ट अगर पीएसयू की मिलती है, तो माड़ी के बाद नेक्स्ट आपको नजर आया कि आप पीएसयू करने भी एक मूव एंजॉय कर सकते हैं फंडामेंटली। लेकिन इस बार टेक्निकली आप क्या नजर आ रहा है? जी सर, वीकली टाइम फ्रेम पे इस वीक में इसने एक अच्छा बुलिश कैंडल बनाया था और साथ में उसके इसी वीक में हमें एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग भी नज़र आई थी। एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था, जिसमें हमारे पास कंफर्मेशन नहीं होती है। ये थोड़ा-सा इसको वॉल्यूम देख के हम हिसाब लगाते हैं कि प्राइस नीचे की तरफ मूव करेगी या इसमें ऊपर की तरफ मूव करेगी। इससे पहले प्राइस एक अच्छे पैरेलल चैनल पे मूव करता हुआ जा रहा था, जो कि इसने इस लेवल को ब्रेक किया और फिर फ़ौरन तेज़ी से अब ये इस चैनल में वापस आने की कोशिश में है। हमारे पास कॉल्स इसमें मल्टीपल जनरेट हुई थी और वो इसी चैनल को कैलकुलेट करके हुई थी। हालात की वजह से, सेंटिमेंट्स की वजह से इसकी मूव में इश्यूज़ भी आए थोड़े। अच्छा, इस तरीके के स्टॉक्स में लेवरेज का भी एक हाथ होता है। लेवरेज वाले स्टॉक्स जो होते हैं, इन केस के कोई बुरी न्यूज़ होती है साथ में या हालात ख़राब होते हैं, तो वो फिर फ़ौरी उसमें हमें एक डाउनफॉल नज़र आता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 24 जुलाई के बाद से इसने कोई लोअर लो नहीं बनाया है, ये हायर लो ही जनरेट करता हुआ जा रहा है। हम इसके लिए एम करेंगे, तकरीबन अगर ये बनता है कोई इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है, और तो ये आ सकता है 340 के पास भी, ये हमें नज़र आ सकता है। और ज़्यादा चांसेस ये हैं कि यहाँ से ये एक लिक्विडिटी स्वीपिंग के बाद ये ऊपर जाता हुआ हमें नज़र है। इसका इस रिट्रेसमेंट के बाद हम इसका एक टारगेट एम करेंगे 351 के पास, और अगला हमारे पास होगा 361 के लिए। यहाँ पे हम ये चीज़ भी कंसीडर थोड़ी कर सकते हैं कि हो सकता है हमें ये प्राइस थोड़ी और कंसोलिडेट होती हुई भी नज़र आए। आरएसआई चूँकि नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है, तो चांसेस यही हैं कि थोड़ा और करेक्शन की तरफ आएगा। सेल साइड इसमें प्रेशर इतना ज़्यादा हैवी मोमेंटम तो नहीं बन रहा, कि कैंडल्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन अलबत्ता प्राइस फिर भी नीचे की तरफ तो आ रही है। तो अगर कोई इसमें एंट्री लेना चाह रहा है, तो 340 से लेके 342 के पास एक अच्छा लेवल इसमें बन रहा है कि यहाँ जहाँ रिवर्सल बनने लगता है, आप यहाँ पे चंक बाइंग भी कर सकते हैं, और आप यहाँ पे अच्छी जो है वो एवरेज भी कर सकते हैं अपने प्राइस को। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट मेरे पास है लोटेक केमिकल। फंडामेंटल की बात की जाए तो कंपनी ने एनुअल सॉरी क्वार्टर 2 2026 में कंपनी ने 2.84 बिलियन का नेट प्रॉफिट अर्न किया था। 23 बिलियन कंपनी की सेल्स हैं। और ये सवाल हमारे पास राणा नुमान साहब हैं, हमारे ब्रोकरी यूजर और क्लाइंट, इनका क्वेश्चन है। क्वार्टर 1 में कंपनी ने 1.47 बिलियन का प्रॉफिट अर्न किया था। क्वार्टर 2 में कंपनी ने अपने पिछले क्वार्टर को बीट किया। अब इसका नेक्स्ट क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने वाला है। और अगर ये क्वार्टर 2 को भी बीट करता है इसी तरह जैसे इसने क्वार्टर 1 को किया था, तो इंशाल्लाह ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा चांस दे सकता है कि यहाँ पे आपको एक फंडामेंटल के रिजल्ट्स की बेस के ऊपर ही आपके फंडामेंटली लोग एग्जिट और एंट्री करते हैं। जी मिसवारा। जी सर, वॉल्यूम क्रिटिकली लो है इसमें, तकरीबन 27 जुलाई के बाद से हमें इसमें काफ़ी कम वॉल्यूम नज़र आया है, जिसकी वजह से जो लास्ट इसकी मूव थी वो फॉलो ये कर नहीं सका और नीचे की तरफ आ गया। अगर हम इसको देखते हैं कि हो सकता है कि ये तकरीबन ईएमए
50 से ये रिट्रेसमेंट लेता है या ईएमए 200 को अपना बेस बनाता है। अभी इसकी मूव में हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कैंडल में हमें सेल साइड लिक्विडिटी थोड़ी सी जनरेट होती हुई नज़र आ रही है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो वॉल्यूम वाकई हमें और ज़्यादा क्लियर पिक्चर ये नज़र आती है कि वॉल्यूम्स आर डेड, और आरएसआई भी एक अच्छे लेवल पर नीचे मौजूद है। ईएमए 200 से इसने सपोर्ट लिया है। हो सकता है कि चूंकि कंटिन्यूअस 3 सेशन से इसमें इनडिसीजन कैंडल बन रही है, हो सकता है एक पुल बैक आता है और 26 को ये रीटेस्ट करता है और यहाँ से फिर ऊपर जाता है। हमारा जो एसएल होगा, अगर हम इसमें एंट्री लेना चाह रहे हैं, 25.5 हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। बेहतर ये है कि ऐसे स्टॉक्स में हम जब बुलिश रिवर्सल कैंडल बनती है वहाँ पे हम एंट्री लें। इस तरह की कोई ग्रीन कैंडल बने तो उधर हम एंट्री लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। जी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट कंपनी हमारे छत्तार सीमेंट है, और क्वार्टर 3 2026 में कंपनी ने 1.53 बिलियन की सेल्स पे 620 मिलियन का नेट प्रॉफिट की थी। तो अब हम क्विकली जल्दी जल्दी करेंगे ताकि हम मैक्सिमम क्वेश्चन को भी रैप अप करें साथ साथ। जी विश्वाना। जी सर, ठट्टा में वॉल्यूम हमें बढ़ता हुआ नज़र आया था और उसके बाद वाक़ई बिल्कुल कम हो गया था और आरएसआई भी अपने नॉर्मल रेंज पे था। इसकी जो मूव थी वो वॉल्यूम बेस ही थी। वॉल्यूम इंटरेस्ट जो है वो हमें 20 जुलाई से कम होता हुआ नज़र आया। वही हालात जो जंग के वो थे, हमारी जो कॉल थी उसको इसने एक अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट किया था। यहाँ से इसने बल्कि इवन ऊपर की तरफ भी गया और उसके बाद ही वापस अपने लेवल्स पर आया और स्टॉप लॉस भी इसने हिट, मतलब कॉल तो कंप्लीट हो गई तो स्टॉप लॉस तो नहीं लगा, लेकिन 57 का लेवल एक अच्छा लेवल था। अगर इसने किसी ने यहाँ पे एंट्री ली हो तो ये एक बहुत अच्छे जोन पर है। डेली टाइम फ्रेम पे आज हम इसमें देख रहे हैं कि एक पिन कैंडल बनी है। इसमें चांस ये है कि अगर मंडे के सेशन में ये यहाँ से हायर हाई प्रिंट करता है तो तकरीबन हम इसमें का एम करेंगे 66.72, और उसके बाद फिर हम इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे 68 और 69.2 के पास। वॉल्यूम बिल्कुल डेड है। वॉल्यूम में तकरीबन और आरएसआई में भी एक बेरिश डाइवर्जेंस बनी हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि जैसे ही इसमें बायर्स का इंटरेस्ट बनेगा इसमें मूव बनती हुई नजर आएगी। जी नेक्स्ट शेयर मेरे पास डीसीआर है, और डीसीआर में हमारे पास क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको एसआईपी के लिए रखा होता है, और आज इसकी एक्स डेट भी थी गालबन, इसलिए ये एक्स डी जो लिखाता है, अक्सर आप किसी शेयर के साथ लिखा हो ना एक्स डी, तो इसका मतलब है कि आज इसकी एक्स डेट है। इससे थोड़ा सा ये कि हम थोड़ा सा सेशन के साथ लर्निंग भी कर लेंगे। तो अगर क्वार्टर 3 2026 में देखा जाए तो कंपनी ने 1.70 बिलियन की सेल्स पे 1.45 बिलियन का नेट प्रॉफिट अर्न किया था। और अगर ईपीएस देखा जाए तो कंपनी का ईपीएस पिछले क्वार्टर की निस्बत ईपीएस कम था। पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 1.08 था अर्निंग पर शेयर, और क्वार्टर 3 में कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर था वो 0.65 था। तो जी मिस वाला टेक्निकल लेवल में इसका नज़र आ रहा है। सर वीकली टाइम फ्रेम पे इसने डबल बॉटम प्रिंट किया था और उसकी एक इमीडिएट जो पैटर्न का लेवल था वो 43.8 के करीब, 43 के पास ही हम इसको करते हैं अंदाजन, वहाँ पे था। इसमें तकरीबन 3 अगस्त के बाद से वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ नज़र आया और आरएसआई भी पोटेंशियली एक अच्छे लेवल पे नज़र आ रहा है, जिसका हमने असर ये देखा कि एक अच्छी वीकली टाइम फ्रेम पे बुलिश कैंडल हमें बनती हुई नज़र आई। अब यहाँ पे आज के सेशन में हमें इसमें प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई है साथ में, लेकिन साथ सेल साइड लिक्विडिटी भी है। उम्मीद ये करते हैं कि अगर ये आजकल के मंडे ट्यूसडे के सेशन में भी तकरीबन 38.2 के लेवल को ब्रेक नहीं करता और 38 से ऊपर की तरफ ये प्रिंट करता है, एक हायर हाई बनाता है, तो हम इसमें उम्मीद ये करते हैं कि ये 39 के लेवल को हिट कर सकता है। वरना हमारे पास हम ये तकरीबन EMA 50 से को एक एज अ डायनामिक सपोर्ट बनाते हुए ये चलता हुआ आ रहा है। हम उम्मीद ये करेंगे कि अगर ये यहाँ से फॉल आता है तो EMA 20 से ये रिट्रेस होके फिर ये ऊपर की तरफ जा सकता है। जी नेक्स्ट शेयर मेरे पास, और साजगार जो शेयर है हमारे पास,
क्वार्टर 3 2026 में कंपनी ने 47.36 बिलियन की सेल्स की थी, 6.44 बिलियन का प्रॉफिट किया था, जो कि पिछले क्वार्टर में से बहुत बड़ा मार्जिन था। क्वार्टर 2 में कंपनी ने 4 बिलियन का नेट प्रॉफिट अर्न किया था, क्वार्टर 3 में कंपनी ने 6.44 बिलियन का नेट प्रॉफिट अर्न किया था। तो रिजल्ट बहुत अच्छे थे, नंबर बहुत अच्छे थे। कंपनी काफ़ी टाइम से ये शेयर जो है इसी प्राइस रेंज बाउंड में घूम रही है। जी मिस बार, अब इसमें हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है? सर ये अभी जिस रेंज में मौजूद है वो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड ज़ोन बन रही है, तकरीबन 1862 से ऊपर जाएगी ये। 1981 के दरमियान अगर ये इस लेवल को ब्रेक करती है, यहाँ से नीचे आती है, तो हम देखेंगे इसको तकरीबन 1600 के आसपास। और इन केस अल्लाह ना करे कि इस लेवल को ये अगर ब्रेक करती है तो 1520 को, जो कि होने के चांसेस बहुत कम है, तो हम एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन देखेंगे और उसमें ये होगा कि ये ग्रेजुअली लोअर हाई प्रिंट करती हुई नीचे की तरफ जाती हुई नजर आएगी। तो हम इतने बुरे सिनेरियो की तरफ नहीं जाते। हम इसको देखते हैं कि तकरीबन 3 हफ्ते पहले से 20 जुलाई के बाद से ये हायर लो तो बना रहा है, नीचे की तरफ नहीं आया, लेकिन साथ में ये हायर हाई को भी बनाने में नाकामयाब रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम चूंकि हमें बिल्कुल डेड इसमें नज़र आ रहे हैं, साथ में रिडक्शन भी कोई हमें बनती हुई नज़र नहीं आ रही है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि ये इस लेवल पे थोड़ा सा सस्टेन करता है, रेंज बाउंड करता है। जो रिटेलर्स हैं जो यहाँ एंटर हुए हैं उनको किक आउट करे और फिर इसमें एक मूव बनती हुई हमें नज़र आ सकती है। हमारा जो प्रीवियस एक पैटर्न बन रहा था बुलिश पेनिन पैटर्न, उसके टारगेट के हिसाब से ये 23.77 पे आ रहा था, लेकिन चूंकि वो अब पैटर्न कैंसिल हो चुका है और हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि अब कोई नया अच्छा पैटर्न फॉर्म होगा और ये फिर ऊपर जा सकता है। हेलो। जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? नेक्स्ट शेयर हमारे पास एफएफसी है। एफएफसी क्वार्टर 2 2026 कंपनी ने 104 बिलियन की सेल्स की थी और 24.37 बिलियन का नेट प्रॉफिट अर्न किया था। अगर अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो क्वार्टर 1 में अर्निंग पर शेयर जो है वो 12.14 था। क्वार्टर 2 में कंपनी का ईपीएस जो है 16.94 था। परफेक्ट शेयर होता है ये। वो एफएफसी है जो कि एसआईपी के लिए बड़ा कामयाब है। और मुझे लगता है आप लोगों के रिएक्शन नज़र नहीं आ रही, शायद इसलिए मेरे अल्फाज आगे पीछे हो रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि हमें कोई सुन नहीं रहा। जी मिस बार, एफएफसी के ऊपर क्या राय है आपकी? सर एफएफसी में वॉल्यूम थोड़ा सा में कम होता हुआ नज़र आ रहा है और साथ में प्राइस बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रही हूँ, इसमें ऐसा हो सकता है जब वॉल्यूम हमारे पास ग्रेजुअली कम होता है, प्राइस हाई हाई प्रिंट कर रही होती है, तो इसके ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि या तो एक टाइम पे प्राइस थोड़ी रेंज बाउंड हो जाएगी या एक पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि बायर का इमीडिएट इंटरेस्ट जो है ना वो एग्रेसिवली इतना इंटरेस्टेड इसमें नज़र नहीं आ रहे होते। अभी अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के ऊपर प्राइस मौजूद है, और लास्ट टाइम भी इस लेवल को तकरीबन 583 से को ये सस्टेन नहीं कर पाई थी और वहां से ये रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आई थी। हमारी कॉल भी थी और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे हालात थे इंटरनेशनल, उसकी वजह से हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये उसी लेवल पे आज मौजूद है। और यहाँ पर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जो मल्टीपल इसमें कुछ गैप्स आ रहे हैं प्राइसेस के, उन गैप को ये फुलफिल कर सकता है और फिर वहाँ से वापस ये ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आ सकता है। इसमें हम इमीडिएट अगर हम पुल बैक देखते हैं तो अगर हमारे पास एक अच्छा बाइंग चांस बनता है 572 से 574 के दरमियान, ये एक गैप है। यहाँ पे से अगर रिट्रेस होता है तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं अपनी, या ये तकरीबन 568 से 570 के दरमियान भी आपको एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, और उसके बाद 554 से तकरीबन 559 के दरमियान, इन केस कि ये इन दोनों लेवल्स को ब्रेक करता हुआ नीचे आता है, वॉल्यूम अच्छा हमें डेवलप होता हुआ नज़र नहीं आता है, तो फिर डेफिनेटली ये इस अपने प्रीवियस बाइंग जोन को अपने लास्ट
جو یہ گیپ ہے اس کی طرف یہ ہمیں نظر آ سکتا ہے 532 سے 545 کے درمیان آنے کے بھی اس میں چانسز موجود ہیں۔ جی نیکسٹ ہمارے پاس کمپنی ہے میزان بینک آؤٹ پرفارم کیا ینگس کیپٹل میں، ڈاکٹر صاحب نے اس کا لانگ ٹرم ٹارگیٹ دیا تھا، آپ کے ساتھ ویب سائٹ کے اوپر ڈاکٹر صاحب شیئر کیا ہوا تھا۔ انہوں نے اس شیئر کو جب یہ 375 کا تھا، مجھے یاد ہم نے ایک سیشن کیا تھا اور اس میں ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا یہ شیئر کو 600 پہ نظر آتا ہے کہ یہ شیئر جو ہے 600 کو کراس کرے گا، تو انشاءاللہ الحمدللہ اس کو بھی آلموسٹ ہم کلوز کر چکے ہیں۔ جی سر، آج اس نے ماشاءاللہ سے 599 کے قریب میرے خیال سے یا 600 کے قریب اس نے ہٹ کیا اور اس کے بعد یہ نیچے آیا۔ سر ایم ای بی بالکل ایل میں ہم ویسے تو اس نے ایک بہت اچھی موو دے دی ہے، لیکن اس میں کچھ تھوڑے سے ہمیں ریڈ فلیگس نظر آ رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ پرائز تقریباً اس میں ہائر ہائی تو پرنٹ کرتی ہوئی جا رہی ہے، لیکن ہمیں والیوم میں ڈائیورجنس نظر آ رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آر ایس آئی میں بھی ہمیں بیرش ڈائیورجنس نظر آ رہی ہے ویکلی ٹائم فریم پہ۔ اچھی خبر یہ ہے کہ یہ تقریباً اگر کبھی بھی اس میں ایک پل بیک آتا ہے تو وہ اتنا بڑا پل بیک نہیں آتا، اگر ہم اس کو ویکلی منتھلی پر بھی دیکھتے ہیں تو اتنی کوئی شدید بڑی کریکشن یہ ہمیں کبھی دکھا نہیں پایا۔ ہم تقریباً اس کو اگر 2020 سے ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں یہ والیوم اور بیرش ڈائیورجنس ڈیولپ ہوتی بھی نظر تو آ رہی ہے، لیکن ہم زیادہ سے زیادہ اس میں ایم یہ کر سکتے ہیں کہ یہ 526 یا 500 سے یہ ریٹریس ہو سکتا ہے۔ اس میں پوٹینشیل ہے، ایون کہ اس میں ایک چانس یہ بھی بنتا ہے کہ یہ ایکس ڈیٹ سے پہلے ایک دوبارہ موو دینا شروع کرے ایک مائنر پل بیک کے بعد۔ یہاں پہ ہمارے پاس 526 سے لے کے تقریباً 559 کے قریب کا ہمارے پاس ایک مارجن ہے۔ یہاں پہ ملٹیپل گیپس ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ ان گیپس کو فل کر سکتا ہے اور پھر اوپر کی طرف جاتا ہوا یہ ہمیں نظر آ سکتا ہے۔ بالکل نیکسٹ شیئر ہمارے پاس میپل لیف ہے، اور میں تھوڑا سا یہ جو گیپس کی بات ہوتی ہے تھوڑا سا آپ لوگ بھی چارٹ دیکھا کریں۔ کمپنی جب بھی کوئی کمپنی آل ٹائم ہائی لگاتی ہے تو اس کے بعد وہ کچھ کنسولیڈیٹ کرتی ہے۔ اس سے پہلے میزان بینک نے 480 کا ہائی 493 کا ہائی لگایا تھا، پھر 461 سے لے کے 470 کے درمیان تھا، اور ڈسکارڈ کے اندر بھی ہم نے میرے سے سیشن میں کسی نے پوچھا تھا تو میں نے یہی کہا تھا یار میں تو اس کو یہ 460 سے 470 کے جب ملتے میں بائی کرتا ہوں۔ تو وہی بات تھی، سیشن کے بعد پھر ہم نے 2 ویک یا 3 ویک بعد دیکھا وہ 505 پہ گیا، پھر یہ کافی ٹائم 515 پہ، ابھی جب اس نے آل ٹائم ہائی لگایا تو 515 پہ کافی دیر اس نے ویٹ کیا کہ اس کے بعد پھر اس نے ایک رائٹ دی آپ سب کو جو آج 600 کے آس پاس آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو کوئی بھی آل ٹائم ہائی لگاتا ہے تو وہ تھوڑا سا پل بیک لیتا ہے، تو وہاں پہ لانگ ٹرم انویسٹر بالکل بھول جائیں، پریشان ہو جائیں کہ یار یہ واپس آ رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا، وہ واپس آتا ہے آگے جانے کے لیے۔ اور میزان بینک کا بالکل، چارٹ جو ایسا اوپر تھا، جاتا ہے اس نے واپس نیچے بھی آنا ہے۔ بالکل ایسی بات ہے، اور میزان بینک کا چارٹ آپ کو یہ آپ اسپیسیفک دیکھیں گے آپ کو نظر آئے گا یار جب یہ آل ٹائم ہائی لگایا اس نے پل بیک لیا پھر آگے گیا۔ یہ مس ہمارا نیکسٹ میپل لیف کا ہے، کیونکہ ہمارا ٹائم تھوڑا سا شارٹ ہے اور کافی سا شیئر ہم نے ڈسکس کر لیا ہے۔ جی سر، ویکلی ٹائم فریم پہ ایم ایل سی ایف ایک اچھے ڈیمانڈ زون پر موجود ہے۔ تقریباً آپ کو میں ایک ریکٹینگل ڈرا کر کے دکھا رہی ہوں، یہاں پہ پرائس ہمیشہ تھوڑا کنسالیڈیٹ کرتی ہے، تقریباً یہ 2025 میں بھی 2025 سے لے کے 4 اگست تک یہاں پہ اس نے کنسالیڈیٹ کیا، اس کے بعد پھر یہ واپس اس رینج میں آئی ہے 2026 سے لے کے یہاں سے اگر بریک آؤٹ ہوا اس نے یہاں اس کو ری ٹیسٹ کیا اور واپس ابھی ری ٹیسٹنگ کی طرف ہے۔ اب یہاں سے یہ اگریسولی اوپر جاتی ہوئی ہمیں نظر تو آئی، بریک آؤٹ بنا، والیوم یہاں پہ تھوڑا سا بڑھتا ہوا نظر آیا، اس کے ساتھ ساتھ آر ایس آئی بھی جو ہے اس میں ہمیں ایک چھوٹی سی بلش ڈائیورجنس بھی بنتی ہوئی نظر آئی، جس کو اب یہ پلے کرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ہم اس کا امیڈیٹ ٹارگٹ ایم کریں گے 109 کے لیے، اگر یہ اس لیول کو اچھے والیومز کے ساتھ اچھا والیوم کیا ہوگا ہمارا جو ویکلی والیوم ہوگا وہ تقریباً 68 یا 70 ملین سے زیادہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اگر ہم ڈیلی والیوم کی بات کریں گے تو ہمارے پاس والیوم ہونا چاہیے تقریباً 16 ملین سے زیادہ۔ اس والیوم کے ساتھ یہ اس لیول کو سسٹین کرتا ہے، اس کے اوپر رہتا ہے، واپس نیچے نہیں آتا
तो फिर हम टारगेट रखेंगे अपना कि ये और ऊपर की तरफ हमें जाता हुआ नज़र आएगा, और हमारा उसके बाद इमीडिएट टारगेट 119 होगा, और 119 के बाद हम इसको 123 के लिए एम करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली ये ऊपर ही चलता चला जाएगा, इसमें माइनर पुल बैक्स भी आएंगे, जहाँ पे हमें सेल साइड बाय साइड लिक्विडिटी डेवलप होती हुई नजर आएगी। वहाँ एडवाइस यही है कि प्रॉफिट टेकिंग करें और लोअर साइड पे अपने प्राइस को, अपने स्टॉक को आप खरीद के ऊपर के लिए दोबारा तैयार कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट शेयर डिस्कस करने से पहले यहाँ पे किसी ने मेरे से मुझे सवाल किया हुआ है कि अब्दुल्ला ने कहा विच थिंग इंडिकेट टू बाय शेयर फॉर ट्रेडिंग। तो आप जैसे मैं आपके साथ फंडामेंटल डिस्कस कर रहा हूँ, अब मैं साथ जो भी नेक्स्ट शेयर मिसवाना मेरे पास एजीपी है, और जैसे भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि यार एजीपी पे जब मैं फंडामेंटल्स खोलता हूँ, आप यंग कैपिटल की वेबसाइट भी फंडामेंटल खोलें, स्टॉक मार्केट की वेबसाइट जाके फंडामेंटल्स की रिपोर्ट्स को पढ़ लें, ठीक है, उसके एनुअल जो रिजल्ट है उसको आप डिस्कस करें। अगर मैं एजीपी की बात करूँ तो एजीपी क्वार्टर 1 2026 5.39 बिलियन की सेल्स है और 556 मिलियन का नेट प्रॉफिट है। अगर मैं एनुअल देखूँ 2025 में कंपनी ने 2.36 का नेट प्रॉफिट अर्न किया है, 2024 में कंपनी ने 2.8 बिलियन का, 2023 में कंपनी ने 1.19। ये चीज़ें मुझे कॉन्फिडेंस देती हैं, ये चीज़ें मुझे बताती हैं कि यार एजीपी फार्मा सेक्टर में एक अच्छी कंपनी है, 191 के आसपास प्राइस है, मैं इसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकता हूँ, और अर्निंग पर शेयर भी ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। 2024-23 में कंपनी का 4.25 अर्निंग पर शेयर था, 2024 में 7.44 ईपीएस था, 2025 में कंपनी ने 8.43 का ईपीएस दिया। तो ये चीज़ें हैं जो कि फंडामेंटल में चीज़ें सिखाती हैं। अगर आप लोगों के पास लेट्स सपोज आपको आइडिया नहीं है या आपको पता नहीं है कैसे हमें पढ़ना है, तो सिंपल आपके पास ग्रुप में, डिस्कशन ग्रुप में आपके पास मार्केट एक्सपर्ट मौजूद है, डायमंड, गोल्ड, प्लाटिनियम, सिल्वर कैटेगरी में, सब में सेम मार्केट एक्सपर्ट है जो कि प्लाटिनियम है, कोई हमें डिफरेंस नहीं लिखा हुआ, बस एक कैटेगराइज की है क्योंकि हमने चीज़ें ब्रोकरेज हाउस ने अब हमने बेहतर तरीके से मैनेज किया, डॉक्टर साहब ने कुछ नई पॉलिसी बनाई ताकि हम हर यूज़र को, ब्रोकरेज यूज़र को फैसिलिटेट करें। वहाँ पे आप अपने मार्केट एक्सपर्ट को पूछें कि भाई मुझे एजीपी की ईपीएस बताओ, अर्निंग पर शेयर, कि एक शहर का ईपीएस क्या है, वो आपको पिछले 2-3 साल का पूछें उनसे, वो आपको बताएंगे। तो फिर आपको ये कॉन्फिडेंस देगा कि कैसे आपने इस कंपनी में बाय करना है कि नहीं करना। अब एक कंपनी है वो पिछले 4 साल से नेगेटिव चल रही है, उसमें आपने क्या जब बगैर देखे उसके फंडामेंटल आप बाय करेंगे फिर तो आप फंस जाएंगे, स्टक हो जाएंगे। बट जब आप उसके फंडामेंटल्स पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा नहीं यार मैं इससे दूर हूँ। जी मिस बारा जी के बारे में क्या ख्याल है? जी सर, एजीपी एक अच्छी फार्मा कंपनी है जो तकरीबन 2000 जनवरी 2025 से एक आज की तारीख तक भी एक अच्छी, एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बनाती हुई नज़र आ रही है। ये इस लेवल को बार बार रिटेस्ट करती है, ऊपर जाती है और वापस यहाँ पे आ रही है। अभी फ़िलहाल ये इसी लेवल पे मौजूद है। वॉल्यूम तकरीबन ड्राई रही हैं, और आरएसआई में भी कोई अच्छी तेज़ मूव हमें बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। इट माइट बी पॉसिबल कि यहाँ ये थोड़ा सा रेस्ट करती है, थोड़े कूल डाउन होती है, और फिर ऊपर की तरफ जाती हुई हमें नज़र आ सकती है। चूँकि लास्ट 3 वीक से इसने अपने लास्ट लो को ब्रेक नहीं किया, तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि इसके बाद हो सकता है ये ऊपर की तरफ जाती हुई हमें नज़र आए। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो वॉल्यूम कल परसों की रैली में सेशन में थोड़े से बेहतर हमें होते हुए नज़र आए हैं। तकरीबन जो एवरेज वॉल्यूम है उसके करीब तो पहुँच गए, लेकिन उस एवरेज वॉल्यूम से ऊपर होना इसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक अच्छी मूव के लिए। साथ-साथ आरएसआई में भी कोई ख़ास एक अच्छी, हम कहें कि जान या अपसाइड मूव डेवलप होती हुई नज़र नहीं आ रही है। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि ये ग्रेजुअली खामोशी के साथ ये थोड़ा ऊपर चला जाए इस तरह से। अब हम, अगर कोई इसमें एंट्री लेना चाहता है
تو وہ کوشش کرے کہ یہاں سے جب نیچے آتا ہے تھوڑا اس لیول کو بریک نہیں کرے گا, 181 اس کا اسٹاپ لاس ہوگا, اور یہاں پہ آپ انٹری لے سکتے ہیں. اگر آپ اس میں انٹری لے کے اسٹاک ہو چکے ہیں تو زیادہ وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس یہاں پہ ایک اچھا آپشن ملا کہ آپ اس کو پرائس کو ایوریج کر سکتے ہیں. اچھا, ہماری جو ڈیلی کالز ہیں اس میں ایک رسک مینجمنٹ کا ایک وہ ہے, اکثر وہ بیشتر میں کالز میں ساتھ میں جب ریزن ہوتا ہے وہاں پہ بھی لکھ رہی ہوتی ہوں, وہ یہ ہے کہ جب ایز رسک مینجمنٹ, کیونکہ ابھی ہم لوگ ایک انسرٹن سچویشن میں ہیں, کنڈیشن میں ہیں, ہمیں نہیں پتا کب کون سا ٹویٹ آ جاتا ہے, تو جو فرسٹ آپ کا سپلائی زون ہوتا ہے وہاں پہ کوشش کریں کہ اچھے مارجن سے پروفٹ ٹیکنگ کریں, اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے ریزسٹنس 2 یا سپلائی زون 2 کے لیے آپ موو کرتے ہیں. بہتر ہے کہ آپ 70-60% سے آپ اس کو آف لوڈ کر لیں, یا اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ اتنا زیادہ اوپر جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے تو آپ اس کو پھر فلی ایگزٹ بھی لے سکتے ہیں ان لیولز پہ. جی, نیکسٹ شیئر ہمارا پی پی ایل ہے, اور ڈسکلیمر دینا بھی یہاں پر ضروری ہے. ہم جو بھی یہ آپ کے ساتھ ٹیکنیکلی اور فنڈامنٹلی جو ہے چیزیں شیئر کرتے ہیں, آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی اس طرح سے اپنے ریسرچ کیا کریں, اور ہو سکتا ہم بھی غلط ہوں, ہم بھی کہیں مسٹیک کر, ٹھیک ہے, تو آپ لوگ ہمیں بتایا کریں گے سر یہ جو آپ نے نمبرز بتائے تھے یا یہاں پہ جو چارٹ تھا یہ غلط تھا. جی مس وارا, پی پی ایل کے اوپر تھوڑا بتائیے گا. جی سر, پی پی ایل نے ایک اچھی موو دی, اور اس کے بعد اس میں ایک دم سے والیوم ڈیڈ ہو گئے 29 جون کے بعد سے. غالباً یہ وہی ٹائم ہے جو جس میں حالات خراب ہوئے تھے, اور اس کے بعد اب یہ تقریباً ای ایم اے 50 سے اس نے ایک یہ ریٹریسمنٹ لے رہا ہے, اور پھر سپورٹ لے کے سوری یہ اوپر کی طرف ہمیں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن آج کے سیشن کی کینڈل میں ہمیں انڈیسیژن بھی نظر آیا, اور اس نے اپنے لاسٹ لو کو بھی کلوز بریک نہیں کیا ہے 127 کے اوپر. تو یہاں پہ ہمارے پاس تھوڑا سا ایک رسک بنتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ یہ ایک پل بیک دوبارہ بنائے اور یہ اس پرائس کو ٹیسٹ کر سکتا ہے. ڈیلی ٹائم فریم پہ ہم اس کو جب دیکھ رہے ہیں تو ہمیں آر ایس آئی اوپر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. والیوم جو ہے وہ بہت خاص نہیں ڈیولپ ہو رہے, وہ اس طرح کے والیوم نہیں ہے کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اب بہت اسٹرانگ موو اس میں فی الحال تیزی سے آنے والی ہے یا ریلی آنے والی ہے. یہاں پہ کافی زیادہ ایک پرائز امبیلنسز بھی موجود ہیں گے 211 سے 214 کے درمیان, اس کے ساتھ ساتھ 217 سے 217.7 کے درمیان بھی 218 کر لیں, یہاں پر بھی موجود ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہاں تک یہ تھوڑا ریٹریس کرتا ہے اور پھر اوپر جاتا ہے, کیونکہ تقریباً لاسٹ 2 سیشن سے یہ اپنے ہائی کو بریک کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا. جہاں پہ یہ اگر کوئی فریش اس میں انٹری لینا چاہ رہا ہے تو بہتر یہی ہے کہ وہ اچھے والیوم ایک بلش کینڈل کے ساتھ 223 سے اوپر یہ کلوز ہوگا تو پھر اس میں فریش انٹری بنتی ہے. اور اگر اللہ نہ کرے کوئی اس میں اسٹک ہو گیا ہو تو اس کے لیے ایڈوائز یہ ہے کہ آپ یہاں پہ چاہیں تو ایوریج کر سکتے ہیں جب آپ پہ ایک ڈپ آتا ہے, چاہے تو آپ تھوڑی سی اپنی پرائس سائزنگ کر سکتے ہیں, آپ تھوڑے اسکرپٹ کے ایک لاٹ سے آف لوڈ کریں اور پھر لوور لیول پہ اس کو بائی بیک کر سکتے ہیں. نہیں, نیکسٹ ایئر میرے پاس پی جی ایل ہے, اور اب ہم جلدی جلدی کریں گے اس بارہ. ہم ڈیمانڈ سر کون سا اسکرپٹ ہے؟ طارق گلاس ٹی جی ایل. ٹی جی ایل, جی, اور اب ہم صرف بتائیں گے لیول بتائیں گے, کوئی اب ہمارا ٹائم تھوڑا سا کم ہے, اور ڈاکٹر صاحب نے آپ سے پرومس کیا ہوگا بروکنگ یوزر سے, ہم بھی آپ سے دونوں پرومس کرتے ہیں کہ ہم وی ٹرائی کہ ہم ویک میں 2 سیشن کریں. ایک سیشن جیسے بھی ہم کر رہے ہیں, اس سیشن میں جو شیئرز بچ جائیں گے پلس جو نئے ہم سیشن کے اندر آپ ہمیں بتائیں گے وہ والے ہم شیئرز کو پہلے ڈسکس کر لیے کریں گے. اگر آپ کو یہ آئیڈیا پسند آیا تو ریئیکشن بنتا ہے, اگر ریئیکشن کم آئے تو ہم دونوں سمجھیں گے کہ آپ لوگوں کو ہمارا سیشن پسند نہیں آیا اور آپ ایک ہی سیشن چاہتے ہیں. بالکل بالکل سر, ریٹینشن ہوتی ہے یہاں پہ, آپ کو شاداب ملتی ہے ایک, پھر ہمت آتی ہے انسان میں کہ اور اچھے سے وہ پروڈیوس کرے چیزیں. شاداب صاحب نے جو ہے نا وہ جن والا ریئیکشن دیا ہے, اس کا مطلب ان کو ہماری بات پسند نہیں آئی. تو باقی
TGL के ऊपर अगर मैं आपको बताऊं, क्वार्टर 3 2026 कंपनी ने 1.10 बिलियन का नेट प्रॉफिट अर्न किया था, 8 बिलियन की सेल्स थी, जो कि पिछले क्वार्टर में उसमें बहुत अच्छी थी। जी मिस वाला, टेक्निकली इसका क्या नजर आ रहा है? हम जल्दी जल्दी इसको रैप अप करते हैं अपना। टेक्निकली भी सर ये फिलहाल हमें डेली टाइम फ्रेम पे रेंज बाउंड नज़र आ रहा है, लेकिन साथ में इसमें बाई साइड लिक्विडिटी भी बन रही है। उम्मीद ये है कि यहाँ से रिजेक्शन के बाद ये फिर हायर हाई बना सकता है, लेकिन फिलहाल इसमें भी प्रॉब्लम यही है कि ये एक लेवल पे आके स्टक हुआ है और उसको मल्टीपल रिजेक्शंस इस लेवल 194 से मिल चुकी हैं। यहाँ पे अगर वॉल्यूम जनरेट होगा, क्योंकि वॉल्यूम भी फिलहाल हमारे पास कोई ख़ास इतना अच्छा नहीं है, RSI एक न्यूट्रल जोन में मौजूद है जहाँ हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये इसमें मूव अपसाइड बन सकती है, ये इस लेवल पे सस्टेन कर सकता है। आने वाले दिनों में अगर कोई न्यूज़ बनती है डेफिनेटली या हमारे इंडिकेटर्स जो है वो अच्छे होते हैं, तो इंशाल्लाह हम इसका इमीडिएट टारगेट एम करेंगे 196 से 202 के दरमियान। नेक्स्ट शेयर हमारे पास सिस्टम है, बहुत अच्छी कंपनी है, टेली कम्युनिकेशन के सेक्टर के अंदर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की कंपनी है। क्वार्टर 1 2026 2 बिलियन का नेट प्रॉफिट, क्वार्टर 4 3 2 मतलब पिछले जितने क्वार्टर है कंपनी अपना प्रॉफिट जो है वो मेंटेन करती आ रही है और सेल्स नंबर इंक्रीज करती जा रही है। तो फंडामेंटली इसमें हमें क्या नजर आ रहा है कि कहाँ पे अब इसके लेवल्स पे बाइंग बनती है, या कहाँ पे अब इसको हम जो लोग स्टक हैं अगर एवरेज ना करें या करें, क्या करें? सर हमें इस लेवल पे बुलिश डाइवर्जेंस बनती हुई नज़र आई है, जिसको अब ये प्ले करता हुआ नज़र आया है। इसने हायर साइड पे मूव करना शुरू किया, लेकिन आज की कैंडल में हमें इनडिसीजन, पेन कैंडल बनी है, इनडिसीजन है। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ये एक पुल बैक आता है इसमें और ये प्राइस को रीटेस्ट करता है 131 से लेके तकरीबन 135 के दरमियान। मैंने इसको एवरेज किया है, यहाँ पे एक प्राइस गैप है और यहाँ पे भी एक प्राइस इम्बैलेंस नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे ये रिटेस्ट करता है, हमारा स्टॉप लॉस होगा 129 पे और फिर वहाँ से हम इसको ऊपर मूव करता हुआ देख सकते हैं। नेक्स्ट शेयर मेरे पास है वफाई एनर्जी पाकिस्तान। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात की जाए, क्वार्टर 1 2026 134 बिलियन की सेल पे कंपनी ने 2.16 बिलियन का नेट प्रॉफिट किया था, जो कि पिछले क्वार्टर की निस्बत बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा था। जी मिस वारा, अब इसके ऊपर हमें टेक्निकल थोड़ा सा बता दें। सरप्राइज तकरीबन अपने लास्ट लो को ब्रेक करने में नाकाम रही है और ज़्यादा चांसेस ये हैं कि अब यहाँ से ये ऊपर जा सकता है, क्योंकि लास्ट वीक की कैंडल बहुत अच्छी बुलिश बनी थी। वहाँ पे हमें वीक के एंड पे हम होप करते हैं यहाँ पे हमें एक प्रॉफिट टेकिंग भी बंद होती हुई नज़र आई है, लेकिन वॉल्यूम और RSI एक बहुत अच्छे लेवल पे हमें नज़र आ रहे हैं। ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये थोड़ा सा या तो प्राइस को ये सस्टेन कर सकता है और फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। रीटेस्टिंग के ऑप्शन भी मौजूद है, जैसे कि बात है कि इरेक्शन तो तेज़ी से आ जाती है बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन जब रिवर्स होती है प्राइस तो हायर हाई प्रिंट करती भी जाती है या हायर लो साथ में प्रिंट हो रहे होते हैं। तो ये थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा और फिर थोड़ा ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। जी शादाब साहब का सवाल का आंसर हमने कर देने लगे हैं। BIPTL सॉरी पाकिस्तान सर। पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल, PIBTL। BTL। जी, और ये शहदाद साहब ने जो जिम का रिएक्शन दिया था, उम्मीद है अब वो रिएक्शन अच्छा देंगे हमें। क्वार्टर 3 2026 कंपनी ने 3.51 बिलियन की सेल्स की थी, 509 मिलियन का नेट प्रॉफिट अर्न किया था, जो कि पिछले क्वार्टर से कम था, जो कि क्वार्टर 2 था। अब क्वार्टर 4 का रिजल्ट इसका एक्सपेक्टेड अर्निंग रिपोर्ट। जी मिस वारा। जी सर, डेली टाइम फ्रेम भी बता रही हूँ, ज़्यादा डीप में इसमें जा नहीं रही हूँ। प्राइस अपने स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन पर अभी मौजूद है। इसमें वॉल्यूम में भी कोई ख़ास इसमें वो नहीं है, वॉल्यूम काफ़ी कम है। डेली टाइम फ्रेम में जितना होना चाहिए तकरीबन 16 मिलियन होना चाहिए और RSI भी इसके न्यूट्रल जोन में है। यहाँ पे ज़्यादा चांसेस ये हैं कि प्राइस कंसोलिडेट करती है। मल्टीपल यहाँ पे हमें लिक्विडिटीज़ नज़र आ रही हैं बाई साइड और सेल साइड की, मतलब अभी डिसीजन है, यहाँ प्राइस सस्टेन कर सकती है और फिर इंशाल्लाह ये पुल बैक की तरफ जाती हुई नज़र आती है। हम हायर टाइम फ्रेम पे जब इसको देख रहे हैं, मैं एनालिसिस नहीं दे रही हूँ लेकिन सिर्फ जस्ट एक उसके लिए बना रही हूँ, तो ज़्यादा चांसेस यही है कि ये इस लेवल को नीचे ब्रेक नहीं करेगा।
जी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है MFL मेडको फूड, एम क्वार्टर एफ दो एफ दो एल। हजार छब्बीस और MFL नहीं MFL। MFL। क्वार्टर दो में ठीक। कंपनी ने 4 मिलियन का नेट प्रॉफिट अर्न किया था, क्वार्टर तीन में 28 मिलियन का नेट प्रॉफिट अर्न किया था, क्वार्टर वन में 146 मिलियन का नेट प्रॉफिट अर्न किया था। अभी जो इनकी रिपोर्ट आएगी वो चौथी होगी, एनुअल होगी, जो एक्सपेक्टेड है। इन्हीं नंबर्स को अगर मैं सामने रखूँ, 2025 में कंपनी ने 413 मिलियन का नेट प्रॉफिट अर्न किया था, 2024 में ये नेगेटिव क्लोजिंग थी, 25 में इन्होंने 413 का था। और अब जो आने वाला रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड है क्वार्टर वन टू थ्री के रिजल्ट को सामने रखते हुए और फोर के नंबर्स को रखते हुए, तो इसका जो TTM बनता है वो 296 मिलियन का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अर्न बनता है तकरीबन। मतलब आप समझ लें 300 मिलियन का, जो कि पिछले क्वार्टर की निस्बत वो सॉरी पिछले एनुअल रिजल्ट की निस्बत बहुत कम है। तो ये हमें लगता है फंडामेंटली यहाँ से पुल बैक देगा रिजल्ट के बाद भी। जी मिस वारा, इसके अंदर क्या नजर आ रहा है आपको? जी सर, इस वी की कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनी है, लेकिन इसमें लिक्विडिटी नहीं है खाली। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट ये करेंगे कि हो सकता है इस लेवल को कंसोलिडेट करे। अगर हम इसमें लोअर टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो 200 EMA से ये हमेशा एक सपोर्ट लेता है और फिर उसके बाद ये ऊपर की मूव करता हुआ हमें नज़र आ रहा होता है। तो यहाँ पे फ़िलहाल ये EMA के पास ही मौजूद है, लेकिन वॉल्यूम ख़त्म है और RSI थोड़ा-सा बेहतर होता हुआ नज़र आया। तो फ़िलहाल जो अभी मुझे चांस नज़र आ रहा है वो ये है कि ये थोड़ा-सा प्राइस को सस्टेन कर सकता है। मैक्स अगर ये ऊपर की तरफ गया, उसके लिए वॉल्यूम का एक अच्छा डेवलप होना ज़रूरी है, और अगर वॉल्यूम नहीं बनता तो ज़्यादा इसमें चांसेस यही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 42.2 और 42.8 से ये रिजेक्ट होके वापस नीचे आ सकता है। अच्छी बात ये है कि इसने तकरीबन 24 जुलाई के बाद से कोई अपना लो ब्रेक नहीं किया है, तो ज़्यादा चांस हम यही समझेंगे, हम कंसीडर ये कर सकते हैं कि इस लेवल पे ये कंसोलिडेट कर रही है, जहाँ पे रिटेलर इसमें से एग्जिट होता है और फिर ये थोड़ा सा हमें मूव होता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ पे वॉल्यूम बनता है, यहाँ पे वॉल्यूम के बाद हम एम करेंगे इसको 44.8 से लेके तकरीबन 47 के दरमियान हमारा इमीडिएट सप्लाई जोन बनेगा। जी नेक्स्ट जो है हमारे पास शेयर है यूनाइटेड बैंक है, UBL। आज उसकी गालबन एक्स डेट होगी, XD उसके साथ लिखा होगा। रिजल्ट बहुत सर, अच्छे हैं कौन सा? UBL। जैसे यूबीएल। ये क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो क्वार्टर दो 2026 341 बिलियन की नेट सेल्स, 35.99 नेट प्रॉफिट। जी मिस वारा, इसके ऊपर अब क्या है, क्योंकि अब ये एक्स एक्स डिविडेंड इन्होंने दिया है, तो अब थोड़ा सा ये पुल बैक यहाँ पे अमूमन कोई भी कंपनी को डिविडेंड देती है उसके बाद वो काफी कंसोलिडेट कार्य होती है। बिल्कुल, बिल्कुल सर, यहाँ पे इसने बुलिश पेनिन पैटर्न बनाया है, जो कि एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है, लेकिन इस पैटर्न का मतलब ये नहीं होता है कि प्राइस बिल्कुल सीधी ऊपर चली जाएगी। थोड़ा इसमें स्टे भी कर सकती है, एक पुल बैक भी आएगा और उसके बाद इसका हम अल्टीमेट अल्टीमेट टारगेट हम 561 एम कर रहे हैं। फिलहाल के कैंडल्स को देखते हैं तो काफ़ी कमज़ोर सी कैंडल्स बनी है, कोई बहुत हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि लिक्विडिटीज़ इनमें सब में हैंगी, वॉल्यूम इसमें ग्रेजुअल कम होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन प्राइस इसमें सस्टेन है। हमारे पास ज़्यादा चांसेस ये हैं कि प्राइस यहाँ पे पुल बैक दे सकती है। अगर EMA देख रहे हैं तो ये EMA 50 से सपोर्ट लेता है और फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर इसको एक डायनामिक सपोर्ट की तरह हम लेते हैं तो 452 से इसको वापस ऊपर की तरफ जाना चाहिए। मैक्सिमम इसमें पुल बैक आता है तो 452 या उससे थोड़ा सा ऊपर, उसके मतलब डायनामिक है तो उस टाइम पे EMA 220 जहाँ पर होगा वहाँ पे इसकी डिमांड जोन बनेगी और फिर उसके बाद हम इसको ऊपर की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं। इसका इमीडिएट टारगेट 481 होगा और उसके बाद हम इसको देखेंगे 489, और उसके बाद हम अगर ये सस्टेन कर लेता है 498 को और अच्छे वॉल्यूम्स इसमें नज़र आते हैं तो फिर ये इंशाल्लाह दोबारा अपना ऑल टाइम हाई बनाता हुआ हमें नज़र आ सकता है। इनर शेयर हमारे पास लक है और उसके फंडामेंटल्स मैं डिस्कस करता हूँ। उससे पहले जो है वो हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 41 लोग हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम ब्रोकरेज का सेक्शन करेंगे, ग्रुप आपकी जो डायमंड गोल्ड कैटेगरी में जितने भी ग्रुप्स हैं उसके अंदर हम अनाउंसमेंट कर देंगे कि नेक्स्ट सेशन एक दिन पहले हम आपको बता देंगे कि कल हमारा 9 से 10 बजे सेशन होगा। लाइव आने वालों को यही होता है फ़ायदा कि हम उनके शेयर्स को डिस्कस करते हैं। जैसे
مثال تو پھر ابھی یہ جو شیئر ہم ڈسکس کر لیں گے یہ شہزاد سلیم صاحب ہیں, انہوں نے لک کے بارے میں پوچھا ہے. اگلا کوشچن میرے پاس حامد میر کا ہے جو کہ فیصل بینک کے بارے میں پوچھیں گے. تو یہ ہوتا ہے کہ گروپ کو ہم کوشش ہے کہ ہم جو باقی بروکریج ہاؤس ہیں اس سے زیادہ ڈفرینٹ کریں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں یہی ہماری ٹریننگ ہوئی ہے, سیشن ہوئے, ڈاکٹر صاحب نے یہی کہا ہے کہ ہم نے جتنا زیادہ اپنے بروکری یوزرز کو فائدہ دینا ہے, کمپنی کو سائٹ پہ رکھتے پہلے ہم نے ان کا فائدہ ڈھونڈنا ہے. تو اس لیے ہم کوئی بھی کسی بھی کمپنی کی اگر آپ نے کال دیکھی ہوگی, ہم نے کبھی بھی ایسی کمپنی کی کال نہیں دیں گے آپ کو جس کے پچھلے 4 کوارٹر نیگیٹو چاہ رہے ہوں گے. جسٹ WTL کی کال ہم نہیں دیں گے. اب آل دو کہ ہمیں اس میں فائدہ ہوگا بینگ اے بروکریج, بٹ ہم اس کی کال نہیں دیتے کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے یار یہ ہمارے لیے ہمارے یوزرز کے لیے صحیح کیا ہے, کیونکہ ہم نے فنڈامنٹلس کی بیس کل کو WTL اوپر چلا جائے نیچے چلا جائے یا بہت اس کے فنڈامنٹل چاہیے تب ہم ڈسکس کریں گے. جیسے سنرجی کا یہاں پہ کسی نے پوچھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے 7 روپے 88 روپے سے بھی ہمارا سیشن ہوا تھا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ, اور وہ سیشن زوم پہ تھا اسی طرح جیسے ابھی ہم کر رہے ہیں. اس پہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ یار یہ مجھے ڈبل ہوتا نظر آ رہا ہے. ینگس کیپٹل کی ویب سائٹ میں جائیں, لانگ ٹرم کے اندر آپ کو یہ شیئر ابھی بھی نظر آئے گا کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کی پرائس دی ہوئی ہے آپ لوگوں کو کہ یار یہ لانگ ٹرم ہی ہے. میں نے پرسنلی اس دن جس دن ڈاکٹر صاحب کو بتایا تھا, میں نے اسی دن اس ویری نیکسٹ ڈے میں نے اس کی کوانٹٹی بائی کر کے رکھ کے چھوڑ دی ہے. میں بھول گیا ہوں کیونکہ میں نے ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا 31 دسمبر 2026 میں ہم ڈسکس کریں گے اس شیئر کا کیا کرنا ہے. تو جو لانگ ٹرم میں ویسے ہوتے ہیں وہ یہ چیز سوچ سکتے ہیں. یہ بھی سبحان اللہ کے اوپر جی سر, لگ بھی اپنی ایک اسٹرانگ سپورٹ زون پہ آیا ہوا ہے. یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تقریباً 452 پہ ملٹیپل ریجیکشنز اس نے فیس کی, اور اس کے بعد اس نے ایک بریک آؤٹ دیا تھا. ہماری بتائی ہوئی جو لیولز تھے اس کو اس نے ری ٹیسٹ کیا ہے, اور اس کے بعد اس نے بریک کیا ہے, ہٹ کیا, اور اس کے بعد یہ واپس نیچے کی طرف آیا ہے. اب آج یہ دوبارہ اسی لیولز پہ موجود ہے اپنے, اور وہیں پہ اپنا کنسولیڈیٹ کر رہا ہے. اچھی بات یہ ہے EMA 200 سے نیچے اس نے کلوزنگ نہیں دی ہے ابھی تک. یہاں پہ بھی لیکوڈیٹی سویپنگ ہوئی اور اس کے بعد پھر یہ اوپر جاتا ہوا نظر آیا. کینڈلز فی الحال یہاں پہ ویک ہے, والیوم نارمل ہے, RSI ڈائیورجنس بھی کوئی ایسی نظر نہیں آ رہی ہے. ہاں البتہ ایک چھوٹی سی بولش ڈائیورجنس بھی نہیں ہے. خیر یہ تو یہ ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. چانسز زیادہ یہی ہے کہ انلیس انٹل اس میں یہاں والیوم ڈیولپ نہیں ہوتا, تقریباً 2 ملین سے زیادہ کا والیوم ہوگا, اور تو پرائز اوپر جاتی بھی نظر آتی ہے. اور ہمارا ٹارگٹ ہم دوبارہ وہی ایم کریں گے کہ 476 سے 490 کے درمیان یہ جا سکتا ہے, اور پھر انشاءاللہ اگر یہ لیولز کو بھی سسٹین کر لیتا ہے تو ہمارے پاس اگلا ٹارگٹ ہوگا 500 پلس کا. چلے نیکسٹ شیئر میرے پاس سیکنڈ لاسٹ شیئر ہوگا آج کا. فیصل بینک ابھی ریسنٹلی رزلٹ بھی اناؤنس کیا تھا, اور جو بھی شیئر ہمارے رہ جائیں گے آج میں اس کو نوٹ ڈاؤن کر لوں گا, اور یا ہم کل آپ سے گروپ میں پوچھ لیں گے, جو آپ کے واٹس ایپ گروپس ہیں اس کے اندر ہم ڈسکشن کے اندر آپ سے پوچھ لیں گے کہ یار کون سے شیئرس رہ گئے تھے. ہم کوشش کریں گے چیٹ سے لے لیں, نہیں تو میں آپ سے آ کے گروپ کے اندر پوچھ لوں گا, اور جو شیئرس رہ جائیں گے اس کو ہم ویری نیکسٹ سیشن میں اسٹارٹ میں ڈسکس کر لیں گے. جی بس ہمارا فیصل بینک پہ تھوڑا بتائیے, کیونکہ ابھی اس کی ارننگ آئی ہے جو کہ ٹھیک ہے, اچھی ہے, ایز پر ایکسپیکٹیشن کی. ڈاکٹر صاحب نے لاسٹ سیشن کے اندر بھی بتایا تھا جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوا تھا, اس میں بھی کہا تھا کہ اس طرح کی ایکسپیکٹیشن جو ہمیں رہتی ویسی نہیں آئی, بٹ ہم نے پھر بھی اس میں دیکھنا ہے کہ ڈیویڈنڈ ابھی اناؤنس ہوگا تو وہ تھوڑا ایک فل بیک لے گا. تو جی مس بارہ کیا نظر آ رہا ہے؟ جی سر, یہ بھی رینج باؤنڈ ہی ہے. یہ تقریباً اپنے ایک ہائی کو بھی بریک کرنے میں اتنا کوئی سکسیسفل نہیں ہوا ہے 103 کو, لیکن یہ ایک ہائر لو پرنٹ کرتا ہوا جا رہا ہے. یہاں پہ لاسٹ کینڈل آج کے سیشن کی ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک پن کینڈل بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہم اس کینڈل کے بعد ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں یہاں پہ والیوم سارا کہ اب والیوم کا ہے, والیوم یہاں پہ ہمیں بنتا ہوا نظر آتا ہے, تو پھر ہم امید کریں گے کہ یہ اوپر کی طرف جا سکتا ہے. اسٹاک ابھی کوئی اتنے برے لیول پر نہیں ہے. اس کا امیڈیٹ اب ڈیمانڈ زون بنتا ہے تقریباً 96 کے 97.8 یا آپ 98 کہہ لیں, اور وہاں سے پھر یہ اوپر کی طرف جاتا ہے. ایک اچھا ہمارے پاس لیول بنے گا 103 پہ, اور اس کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے 106 پہ. اگر ہمیں یہاں پہ اچھے والیومز ڈیولپ ہوتے ہوئے نظر آئے, ان کو یہ سسٹین کرتا ہے, تو انشاءاللہ پھر اسٹاک ہمیں نیا ہائی بناتا ہوا نظر آئے گا.
जी नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है लास्ट आज का, वो हम शामिल करते हैं DGKC का। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं मेरे से कि फेयर वैल्यू जो है क्या है। यंग्स कैपिटल की वेबसाइट पे आप जाएंगे, आप निज़ाम बैंक, फैसल बैंक, आपको खुदाबख्श साहब पूछते हैं माड़ी, हमने वहाँ पे हर कंपनी का डिफरेंट मॉडल के ज़रिए हमने उसकी फेयर वैल्यू कैलकुलेशन किया, और हर फंडामेंटल रिपोर्ट जो नहीं आती है उसके बाद जो नए फंडामेंटल जुड़ते हैं तो हम वो ऐड ऑन करके फेयर वैल्यूज को अपडेट करते हैं। जैसे अभी आप रिजल्ट सेशन क्लोज होगा, हम दोबारा से सारे कंपनीज 500 कंपनीज की फेयर वैल्यूज को फार्मूला में डाल के रीवैल्यूएट करके अपनी वेबसाइट पे फिर अपडेट कर देते हैं। और अगर आपको लगता है कि यार किसी भी कंपनी की जो फेयर वैल्यू वो आपको नहीं मिल रही, तो आप आपके जो ग्रुप्स हैं आप वहाँ में पूछ सकते हैं कि यार मुझे यंग्स कैपिटल की वेबसाइट पे जो है वो नहीं मिल रहा। मैं जैसे ही ये सेशन क्लोज होगा मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा भी दूंगा कि कहाँ पे आपको ये फेयर वैल्यू मिलेगी। उस बार जी सर। DGKC के ऊपर आप चार्ट पड़ेगा। जी सर, DGKC में बहुत सारे लोग कंटिन्यूअस पूछ भी रहे हैं कि हम इसमें बाइंग करें। बाइंग में लोगों को मना कर रही हूँ, उसकी वजह आज मैं सबको बताने वाली हूँ। वो ये है कि मुझे यहाँ पे ग्रेजुअली वॉल्यूम कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। तकरीबन 28 जुलाई के बाद से इसमें वॉल्यूम में कोई अच्छी, हम कहें कि सस्टेन कर रहा है या कुछ ऐसा, वो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन प्राइस जो है वो या तो वो ऊपर की तरफ जा रही है या वो अपने उस पर सस्टेन है। ये जो इंडिकेशन होती है, ये हम इसको कोई ख़ास अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक पुलबैक डेवलप होने वाला है। यहाँ पे हमें एक गैप नज़र आ रहा है तकरीबन 198 से 203 के दरमियान। यहाँ पे भी ये आ सकता है। इसके अलावा EMA 20 से भी ये रिटेस्ट होके ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आ सकता है। आज के सेशन में हम देखते हैं कि एक नेगेटिव कैंडल ही बनी हुई है और ये लास्ट लो हाई को ब्रेक करने में इतनी कामयाब नहीं हो सकी है, जो इस बात की क्लियर इंडिकेशन है कि आने वाले कुछ दिनों में ये एक पुल बैक लेगी और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हो सकता है ये ऊपर जाती हुई हमें जल्दी नजर आए। चलें, डन हो गया। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, साथ में मैं क्लोजिंग करूँगा सेशन की, और फिर आप लोगों के रिएक्शन भी हमें बताएंगे कि आपको ये सेशन कैसा लगा। तो ये यंग्स कैपिटल की वेबसाइट मैंने खोली हुई है, और यहाँ पे मैं मिज़ान बैंक को सर्च करूँगा। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे एक मेन्यू ओपन होता है, मोबाइल पे करेंगे तो आपके पास 3 डॉट्स आ रहे होंगे, तो यहाँ पे ये फेयर वैल्यू लिखी हुई है। तो आप यस देखें कि अभी ये लास्ट अपडेट जब हुई है उसके बाद भी जो रिजल्ट आए वो हम इसमें डाल देंगे। तो आप देख लें कि जो अभी ये प्राइस थी जो हमने लास्ट दी थी उसको इसने अचीव किया और ये आगे गया है। तो अब मेरी आवाज़ आ रही? तो अभी जैसे ही हम नए रिजल्ट्स इसमें अपलोड करेंगे तो ये फेयर वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन जो है वो आप लोगों के ग्रुप में अनाउंस कर देंगे। जो भी नेक्स्ट सेशन आएगा इंशाल्लाह उसके अंदर हम आप लोगों के साथ ग्रुप के अंदर अनाउंस कर देंगे। एक चीज़ जो कि हमें आप लोगों से चाहिए होगी वो ये है कि अगर आप लोगों को हमारी ये चीज़ें जो यंग्स कैपिटल आपके लिए एज अ ब्रोकरेज हाउस यूनिक कर रहा है, ठीक है, तो आप लोग हमें आप लोग आपकी जो सपोर्ट है वो ये है कि आप आगे शेयर करें, लोगों को बताएं यार ये जो है ये बहुत अच्छा है। अब आप लोग हमारे बेसिकली समझ लेंगे मार्केटिंग करने वाले लोग हैं कि जिन्होंने लोगों को बताना है कि यार हम एक ऐसे ग्रुप के अंदर भी हैं जहाँ पे टिपिकली ब्रोकर वाली नहीं होती, विद रीजंस बताया जाता है कि यार ये शेयर करना है उसके पीछे ये रीज़न है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। आपके अकाउंट अगर ओपन हो गए हैं उसमें अपने अकाउंट शेयर, अगर शेयर परेशानी आ रही है, ठीक है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे जी मेरी
اس کمپنی میں شیئر سے نہیں ٹرانسفر ہو رہے, ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے, آپ کو پورا بتائیں گے. تو انشاءاللہ اسی طرح کے سیشنز اب یہ چلتے رہیں گے, یہ یہاں پہ رکیں گے نہیں, اور ہم کوشش کریں گے ایک کا تو ہم پرومس کریں گے ایوری فرائیڈے ہم رات 9 سے 10 بجے سیشن کریں گے. بیچ میں ایک سیشن ہم ایک جو ہے وہ سرپرائز سیشن ہوا کرے گا, وہ لوگ جو کہ ہم 100% فالو کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے, وہ ہوتا ہے منگل کو, ہوتا ہے بدھ کو, وہ ہم سرپرائز ایلیمنٹ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے ہم اس کو رکھیں گے کہ وہ لوگ جو کہ انتظار میں رہتے ہیں کہ یعنی یہ سیشن ہوتا ہے اسپیشل بروکری یوزرز کے لیے, ٹھیک ہے, ہمارے لیے, تو وہ ہم اٹینڈ کریں گے. اور جہاں تک ایک کوشچن میرے پاس یہاں پہ آیا کہ یار ریکارڈنگ, تو اس کی ریکارڈنگ ضرور آپ لوگوں کو مل جائے گی یوٹیوب چینل میں, آپ گروپس کے اندر جو بھی ہے اس کے اندر شیئر ہو جائے گی. بٹ جو سیشن میں لائیو بیٹھ کے ہمیں بھی ہوتا ہے کہ یار جب آپ لوگ ہمیں اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم نے کسی شیئر کے بارے میں بتایا, وہ آپ ساتھ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کی کمنٹس, تو ہمیں لگتا ہے کہ یار کوئی ہمیں سن رہا ہوتا ہے. تو ہمیں یہ زیادہ اچھا لگتا ہے کہ آپ لائیو بیٹھ آئیں, ہمارے ساتھ انٹریکشن کریں. بیسیکلی ہم اس کو چینج, پہلے ہم لاجکس لیول کا سیشن کسی اور طریقے سے کرتے تھے, اس لیے ہم نے اس کا فارمیٹ چینج کیا اور ہم آپ کے پاس آئے ڈائریکٹلی ود لائیو انٹریکشن. تو امید کرتا ہوں آپ سب کو میرا سیشن, میرا اور مس سوارا کا سیشن یہ لاجکس لیول کا پسند آیا ہوگا. گروپ کے اندر بھی, ڈسکشن کے اندر بھی آپ لوگ چاہیں تو اپریشیٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کی جو واٹس ایپ ڈائمنڈ, گولڈ, پلاٹینیم, سلور گروپس ہیں اس کے اندر بھی, کیونکہ ڈاکٹر صاحب بھی وہاں موجود ہوتے ہیں, وہ بھی وہاں پہ آپ لوگوں کے جو سجیشنز ہوں گی وہ بھی ہم ضرور فالو کریں گے, اور آپ کے ریویوز بہت میٹر کرتے ہیں. جیسے ہی ڈسکشن گروپ اوپن ہوگا آپ لوگ ہمیں وہاں پہ بھی سجیشنز دیں, ہم آپ کی سجیشن کو امپروو کریں گے اپنے آپ کو, اور نیکسٹ سیشن میں وہ امپروومنٹ نظر بھی آئے گی. انشاءاللہ اگلے سیشن میں دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.